بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج جو کہانی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے دستور شکن۔ یہ کہانی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ماخوذ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، شکریہ۔ وہ ماہ فروری کا آغاز تھا اور سپہر تیزی سے شام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نمٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ایک جوڑا آپ سے فریاد کرنے آیا ہے۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل حافظ آباد کے ایک دور دراز علاقے جلال پور بھٹیاں کے تھانے میں تھی اور مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے۔ احمد علی، میں نے کانسٹیبل کی اطلاع کے جواب میں سوال کیا، تم ہنسوں کے جوڑے کی بات کر رہے ہو یا پھر کبوتروں کے جوڑے کی؟ نہیں ملک صاحب، میں انسانوں کے جوڑے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایک مرد اور ایک عورت، وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہے، اسی لیے وہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے تھانے میں اس واردات کی رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو بھیجو انہیں اندر۔ اوکے سر، کانسٹیبل احمد علی نے فرمانبرداری سے کہا۔ اور ہاں، وہ دروازے تک پہنچا تو میں نے اضافہ کر دیا، چمن شاہ سے بھی کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ احمد علی اصابت میں گردن ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ حوالدار چمن شاہ اس تھانے میں سب سے سینئر تھا اور ایک فرد شناس پولیس آفیسر بھی۔ میں چونکہ یہاں نیا تھا، اس لیے وہ گاہے بگاہے مجھے اس تھانے اور اس کی حدود کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ دونوں فریادی اور چمن شاہ آگے پیچھے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ حوالدار مجھے سلام کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان میاں بیوی کو بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ میں گہری نظر سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ مرد کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ گندمی رنگت والا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے صاف ستھرے شلوار قمیض پر گرم سویٹر اور اس کے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں بند جوتے تھے۔ وہ اپنی ہولی اور لباس سے آسودہ حال نظر آتا تھا۔ اس کی بیوی ایک میانہ قد اور گوری چٹی عورت تھی۔ اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا، تاہم اس کا نقاب اٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور پرکشش عورت تھی۔ ان کے پاس ایک درمیانے سائز کا اٹیچی کیس بھی تھا، جس میں یقیناً انہوں نے اپنے کپڑے اور ضرورت کا دیگر سامان بھر رکھا ہوگا۔ بعد ازاں مجھے ان کے نام داؤد اور نسیم عرف چھینا معلوم ہوئے۔ میں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ان کا ظاہری معائنہ کر لیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تھانے دار صاحب، میرا نام داؤد ہے اور یہ میری بیوی نسیم ہے۔ وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، ہمارا تعلق گوجرانوالہ شہر کے علاقے باغبان پورہ سے ہے۔ وہاں پر میرا پیتل اور تانبے کے برتن بنانے کا ایک کارخانہ ہے۔ دادا کے زمانے میں ہم لوگ جلال پور بھٹیاں کے گاؤں کوٹ غازی کلاں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہماری 10 ایکڑ آبائی زرعی اراضی ہے۔ دادا کے انتقال کے بعد والد صاحب ہمیں لے کر گوجرانوالہ چلے گئے تھے، مگر انہوں نے اپنی زمین کو فروخت نہیں کیا، بلکہ اسے حیات محمد عرف بابا حیاتہ نامی نوارے کے حوالے کر دیا تھا۔ جب تک والد صاحب زندہ تھے تو وہ سال میں 1 چکر کوٹ غازی کلاں کا ضرور لگایا کرتے تھے، تاکہ مزارے سے فصل وغیرہ کا حساب کر سکیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد یہ کام میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور آج بھی میں اسی مقصد سے اسی طرف آیا تھا، لیکن کوٹ غازی کلاں پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اپنی بات کو نامکمل چھوڑ کر متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔
میری نگاہ مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے معتدل انداز میں استفسار کیا، میں اس حادثے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ آج سے پہلے تو میں اکیلا ہی اس طرف آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، صبح جب میں گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا تو چیمہ اور نسیم نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ آبائی گاؤں کوٹ غازی کلاں جائے گی، سو میں اسے بھی لے آیا۔ جب ہم جلال پور بھٹیاں کے اڈے پر بس سے اترے تو کوٹ غازی کلاں جانے والا آخری تانگا کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ اس بات نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا۔ جلال پور بھٹیاں سے کوٹ غازی کلاں کم و بیش 7 میل ہے اور اس طرف جانے والا تانگا عصر کے فوراً بعد نکل جاتا ہے تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا اتنی اہم بات تمہارے ذہن میں نہیں تھی؟ یہ سارا حساب میرے ذہن میں تھا جناب، اور میں ہمیشہ ظہر کے آس پاس یہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ رسان بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن آج کا دن پہلے سے بہت مختلف ثابت ہوا ہے۔ ہم حسب معمول مقررہ وقت پر بس میں بیٹھ گئے تھے۔ گجرانوالہ سے حافظ آباد اور فتح پور تک سب ٹھیک رہا، لیکن جب ہماری بس آگے بڑھی تو نورود پور کے قریب خراب ہو گئی۔ نورود پور فتح پور اور رسول پور تارڑ کے درمیان واقع ہے، یعنی اس وقت ہم جلال پور بھٹیاں سے لگ بھگ 7 میل پیچھے تھے۔ اتنا زیادہ فاصلہ پیدل چل کر طے نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا ہم بس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کی مشترکہ کوشش اور محنت کے باوجود بھی اس کام میں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تک کوٹ غازی کلاں جانے والا آخری تانگا روانہ ہو چکا تھا۔ ہم اسی شش و پنج میں تھے کہ شب بصری کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پہلے تو میں جب بھی اس طرف آتا تھا تو ایک رات اپنے مزارے کے گھر میں ٹھہر کر اگلے صبح واپس چلا جاتا تھا، لیکن آج صورتحال مشکل اور پریشان کن تھی۔ میں اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ 2 گھڑ سوار ایک طرف سے آئے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ دونوں مسلح تھے اور اپنی حلیت سے وہ ڈاکو اور لٹیرے ہی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی بندوقوں کے بل پر ہمیں لوٹ لیا تھانے صاحب۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے پوچھ لیا، وہ تمہارا کیا لے گئے؟ میرے پاس 1,500 روپے تھے جو میں نے اس بکسے کے اندر کپڑوں کی تہوں میں چھپا رکھے تھے۔ وہ اپنے اٹیچی کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، ان کمینوں نے بڑی بے دردی سے اس بکسے کی تلاشی لی اور میرے رقم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، چیمہ کے طلائی زیورات بھی انہوں نے بزور بندوق اتروا لیے، جن میں 4 طلائی چوڑیاں، جھمکے، گلے کا ہار اور 2 انگوٹھیاں شامل ہیں۔ انسان کے لیے اس کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے تھانے دار صاحب، سو ہم نے خود کو بچا کر باقی سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں داؤد، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، وہ جو کوئی بھی ہیں میں انہیں بہت جلد اپنی حراست میں لے لوں گا۔ تم مجھے ان کے قد کاٹ اور حلیے وغیرہ کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ آئندہ 5 منٹ میں داؤد نے مذکورہ دونوں ڈاکوؤں کے حوالے سے جو وضاحت کی، اسے دیکھ کر یہی لگا جیسے وہ ان سے کئی بار مل چکا ہو۔ میں نے ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ اس دوران میں حوالدار کے چہرے پر کئی ایک رنگ آ کر گزر گئے تھے، جن میں شناسائی کا رنگ سب سے نمایاں تھا۔ مجھے یہ سمجھتے ہوئے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ چمن شاہ ان ڈاکوؤں کو پہچان چکا تھا۔ کچھ ذہن میں آ رہا ہے شاہ جی؟ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
मैं 101% वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो माखा और राजू डाकुओं के गिरोह के लोग थे। चमन शाह ने सरसराती हुई आवाज में जवाब दिया, इन सब का सरगना काना जम्मा है मलिक साहब। काना जम्मा, दाऊद ने इतरावी लहजे में कहा। यह नाम इन दोनों में से एक डाकू ने भी लिया था थानेदार साहब। जमालदीन उर्फ काना जम्मा एक नामी गिरामी डाकू था जो अपने गिरोह के साथ वारदातें किया करता था। एक आंख वाले काना जम्मा के लिए मैं माजी का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो बदनाम जमाना डाकू इस वक्त मेरी हिरासत में था। काना जम्मा की गिरफ्तारी के लिए मुझे वाकईतन पापड़ बेलना पड़े थे। इस थाने में तैनाती के बाद ये मेरा एक बड़ा कारनामा था। आज 4 फरवरी की तारीख थी। मैंने काना जम्मा को गुज़िश्ता रोज यानी 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वो ज़ेरे तफ्तीश था। एक तो रोज में मैं इसके खिलाफ मुकदमा तैयार करके उसे अदालत में पेश करने वाला था। थानेदार साहब, ये काना जम्मा कौन है? दाऊद ने उलझन भरा लहजे में मुझसे पूछा। इसके बंदों ने हमें क्यों लूटा? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो काना जम्मा का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना। काना जम्मा का असल नाम जमालदीन है। वो एक आंख से काना है, इसलिए उसे काना जम्मा कहा जाता है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, काना जम्मा एक बहुत ही खतरनाक डाकू है और इस गिरोह की आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। डाकुओं का काम होता है लूट मार और डकैती करना। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए दोस्त और दुश्मन के फर्क के चक्कर में नहीं पड़ते। बहरकैफ मैंने काना जम्मा की मुजरमाना सरगर्मियों के आगे बंद बांध दिया है। इस वक्त वो मेरी तहवील में है। मैं इसके साथियों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। ये तो आपने खुशी की खबर सुनाई है थानेदार साहब। दाऊद का चेहरा खिल उठा। जिन 2 डाकुओं ने हमें लूटा है, अगर वह आपके हत्थे चढ़ गए तो मेरे पैसे और छीनों के तलाई जेवरात भी बरामद हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर, मैंने पूरे तीकन के साथ कहा। वैसे मैं तुम्हारी याददाश्त की दाद देता हूँ दाऊद। उसका चेहरा लम्हा भर के लिए मुतगय्यर हुआ। फिर उसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, वो किस लिए थानेदार साहब? जब माखा और राजू तुम दोनों को लूट रहे थे तो तुम यकीनन हद से ज्यादा घबरा गए होगे। मैंने दाऊद की आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, इसके बावजूद भी तुमने उनका कद काट लिया और दीगर तफसीलात को ऐसे याद रखा जैसे तुम उन्हें काफी अरसे से जानते हो। वो बात दरअसल ये है थानेदार साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, ये सच है कि मेरा हाफिजा बहुत मजबूत है। मैं आज पहली मर्तबा आपसे मिला हूँ। अगर 10 साल के बाद भी हमारी दूसरी मुलाकात होगी तो मैं देखते ही न सिर्फ आपको पहचान लूंगा बल्कि ये भी बता दूंगा कि आपका वजन और कद कितना है और इन 10 सालों में आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। मेरे तमाम जानने वाले मेरी इस सलाहियत की बहुत तारीफ करते हैं। दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब। इसकी बीवी नसीम उर्फ चीमा ने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। सबको इस बात पर हैरत होती है कि किसी इंसान का दिमाग इस कदर तेज भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में रूह के बाद सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शय इसके दिमाग को बनाया है बीबी। मैंने नसीम की बात के जवाब में कहा, इसीलिए इसी अहम उद्योग की हिफाजत के लिए इसे खोपड़ी जैसे मजबूत किले के अंदर रखा गया है। बस अल्लाह अपने जिस बंदे पर मेहरबान होता है उसे आम लोगों से ज्यादा ज़हनी सलाहियत अता कर देता है। इस लिहाज से तुम्हारा खामद दाऊद बड़ा किस्मत वाला है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो जल्दी से बोली, दाऊद वाकई बहुत अच्छा इंसान है। हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं। हम एक बेऔलाद जोड़ा हैं। दाऊद की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वो कब का दूसरी शादी कर चुका होता, लेकिन दाऊद ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैंने कई बार इससे कहा भी कि औलाद की ख्वाहिश हर इंसान को होती है। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, मगर ये किसी भी सूरत दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता।
बस इसकी जबान पर हर सवाल का एक ही जवाब है, चीमा, अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो सोना रब तुम ही में से मुझे औलाद दे देगा। तुम तो वाकई नसीब वाली हो बीबी, जो तुम्हें इतना वफादार और साबिर और शाकिर खामद मिला है। मैंने मोतदल अंदाज में कहा, सारी जिंदगी इसकी कदर करना। जी जरूर, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोली, फिर हिचकिचाहट आमेज लहजे में इजाफा कर दिया, थानेदार साहब, क्या आपने वाकई काना जमा को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ बिल्कुल, वो इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद है। मैंने मोतदल अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? ऐसा नहीं है जी, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली। मैं पूछे बिना ना रह सका, फिर कैसा है? वो बात दरअसल ये है थानेदार साहब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोली, मैंने डाकुओं के बहुत से किस्से और कहानियां सुन रखी हैं, लेकिन आज पहली बार हकीकी डाकुओं से वास्ता पड़ा है। जब वो दोनों बदबख्त हमें बंदूक दिखाकर लूट रहे थे तो मेरी अकल गुम हो गई थी। मैं इन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे सकी। हालांकि मेरी ये शदीद ख्वाहिश रही है कि कभी किसी डाकू को रूबरू देखूं। क्या आप मुझे? लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, क्या आप मुझे काना जम्मा को देखने का मौका दे सकते हैं? चीमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दाऊद ने उसे झिड़का, काना जम्मा कोई हीरो नहीं जो तुम्हें उसे देखने का शौक चढ़ा है। वो एक खतरनाक डाकू है, पता नहीं इसने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा होगा। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, चीमा की बात पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये पागल तो ऐसी ही उल्टी सीधी बोलती रहती है। दाऊद, तुम्हारी घरवाली की फरमाइश पूरी करने में मुझे कोई कबात नजर नहीं आती। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, काना जमा मेरी तहवील में है। मैं किसी भी वक्त चीमा को उसका दीदार करा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और मसले को हल करना जरूरी है। कौन सा मसला थानेदार साहब? दाऊद ने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। इस मसले का ताल्लुक तुम दोनों मियां बीवी से है। मैंने कहा, इस वक्त शाम हो रही है। इस वक्त वापस गुजरांवाला जाने के लिए तुम लोगों को कोई बस या वैगन नहीं मिलेगी और कोट गाजी कलां की तरफ जाने वाला आखिरी तांगा तुम मिस कर चुके हो। अगर मेरे पास कोई मुतबादिल इंतजाम होता तो मैं तुम्हें कोट गाजी कलां जरूर पहुंचवा देता। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो सर को असाबती जंबिश देते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मसला हमारे रात गुजारने का है और हम इस इलाके में यानी यहाँ आसपास किसी को नहीं जानते। उसने उलझन ज़्यादा अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर मोतदल अंदाज में बोला, थानेदार साहब, क्या आप हमसे थोड़ा सा ताउन कर सकते हैं? हाँ बोलो। मैंने पूछा, तुम मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? अगर आज की रात गुजारने के लिए हमें आपके थाने में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो ये आपका हम पर बहुत एहसान होगा। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, हम सूरज उगते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हम सीधे साधे अमन पसंद लोग हैं। आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी जनाब। थाने में बाहर के किसी बंदे का रात भर के लिए रुक जाना कोई नई या अचंभे की बात नहीं थी और ये जोड़ा तो मुसीबत ज़्यादा था। काना जमा के गिरोह के दो डाकुओं ने उनकी सारी रकम और तलाई जेवरात लूट लिए थे। सच्ची बात तो यह है कि इनके पास कहीं जाने के लिए किराया भी नहीं बचा था। फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं दाऊद, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। तुम मियां बीवी को बाकायदा मंजी बिस्तरा मिलेगा। इसके अलावा रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी फराहम किया जाएगा। तुम इत्मीनान से थाने में रात गुजार सकते हो। समझ लो कि आज की रात तुम मियां बीवी हमारे मेहमान हो। बहुत शुक्रिया थानेदार साहब।
दाऊद ने तशक्कुराना अंदाज में कहा, शुक्र है आपने हमारे लिए सरकारी मेहमान के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। सरकारी मेहमान की इस्तिलाह इन खतरनाक मुजरमों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें तफ्तीश के दौरान में हवालात में बंद रखा जाता है और पूछताछ के लिए उन्हें ट्रायल रूम में ले जाकर खूब खातिरदारी की जाती है। तुम लोग हमारे जाती मेहमान हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सरकारी मेहमान तो डाकुओं का सरगना काना जमा है जो गुज़िश्ता रोज से गाहे बगाहे हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा है। मैं लम्हे भर के लिए रुका, फिर उन अल्फाज में इजाफा कर दिया, वैसे तुम लोगों का इरादा क्या है? मेरा मतलब है कल सुबह तुम कोट गाजी कलां का रुख करोगे या वापस अपने घर गुजरांवाला लौटने का प्रोग्राम है? हम कोट गाजी कलां ही जाएंगे थानेदार साहब, दाऊद ने कहा। हमारे साथ जो होना था वो तो हो चुका। हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसे पूरा करना भी जरूरी है। मैं एक रोज अपने मुदारे बाबा हयाता के पास गुजारूंगा। छीमा पहली मर्तबा गांव देहात की फिजा में आई है, उसे यहाँ के माहौल को भी अच्छी तरह देखना चाहिए। ठीक हो गया। दाऊद के खामोश होने पर मैंने कहा, तुम लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए शब बसरी का माकूल बंदोबस्त करवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। दाऊद उठकर खड़ा हो गया और उसने अपना बक्सा भी उठा लिया। इसकी तकलीद में छीमा ने भी अपनी जगह छोड़ दी। जब वो लोग बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ पलटे तो मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, कोट गाजी कलां से वापसी पर यहाँ आना नहीं भूलना। आज तुम्हारा जो नुकसान हुआ है इसे मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया है। मेरी यही कोशिश होगी कि तुम्हारे गुजरांवाला जाने से पहले मैं माखा और राजू को गिरफ्तार कर लूं। वो दोनों खबीस मेरे हत्थे चढ़ गए तो फिर इनके अंदर से डकैती का सारा माल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी नीयत तो यही है, आगे जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए थानेदार साहब, छीमा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। वैसे हमारा नुकसान कोई मामूली नौयत का नहीं है। अगर आपकी कोशिश से हमारी रकम और जेवरात वापस मिल जाते हैं तो हम आपको इनाम जरूर देंगे। छीमा अपने तलाई जेवरात और दाऊद की नकद रकम के बारे में गलत नहीं कह रही थी। इस जमाने के 1500 रुपए आज के 7.5 लाख समझ लें, और 60 साल पहले सोना ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तोला मिल जाता था। नसीम उर्फ छीमा की 4 चूड़ियां, 2 अंगूठियां, गले का हार और कानों के झुमके, कुल मिलाकर 5 तोले सोने के जेवरात थे। आज इनकी कीमत किसी भी तरह लाखों से कम नहीं थी। आज के हिसाब से इन लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो गया था, जो जाहिर है कोई मामूली बात नहीं थी। मैं किसी इनाम के लालच में अपनी पेशा वाराना खिदमत अंजाम नहीं देता बीबी, मैंने वाशगाफ अल्फाज में छीमा से कहा। एक थाना इंचार्ज होने के नाते ये सब मेरे फराइज में शामिल है। आप लोग कानून पर भरोसा रखें और दुआ करें कि मैं काना जमा की जबान से माखा और राजू के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब हो जाऊं। इसके बाद सारी मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल गए। इनके जाने के बाद मैंने हवलदार चमन शाह से कहा, शाह जी आप इन मियाँ बीवी के खाने पीने और चारपाई बिस्तर वगैरह का इंतजाम करके मेरे पास आ जाएं। मुझे आपसे चंद जरूरी बातें करना है। जो हुक्म मलिक साहब। उठकर खड़ा हो गया और पूछा, इन मेहमानों की चारपाइयां बरामदे में लगवा दूं या किसी अंदरूनी कमरे में? मेरे ख्याल में अब सर्दी में वो दिसंबर और जनवरी वाली शिद्दत बाकी नहीं रही, इसलिए इनकी शब बसरी के लिए बरामदा ज्यादा मुनासिब रहेगा, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। अलबत्ता ये ख्याल रखना कि बिस्तर वगैरह गर्म हो। समझ गया मलिक साहब। इसने असाबत में गर्दन हिलाकर मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया और कमरे से निकल गया। मैं मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। चमन शाह की वापसी कमोबेश आधे घंटे के बाद हुई थी। इस दौरान में मैंने नमाज मगरिब अदा कर ली थी। वो मेरे सामने आकर बैठा और मोतदिल अंदाज में कहा, सब हो गया मलिक साहब। इस वक्त वो दोनों खाना खा रहे हैं। इनकी चारपाइयां बरामदे के कोने में पहलू व पहलू लगा दी हैं।
छीमा पूछ रही थी कि उसे काना जम्मा की शक्ल कब दिखाएंगे। मैंने कह दिया कि तुम लोग खाना खाने के बाद आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया शाहजी। मैंने सताइशी नजर से हवलदार की तरफ देखा। आज की रात हमने काना जम्मा को कड़ी तफ्तीश से गुजारने का प्रोग्राम बनाया था, ताकि कल में इसका तफसीली बयान कलम बंद करने के बाद इसके खिलाफ सख्त तरीन चालान तैयार करके इसे अदालत में पेश कर दूं। इसके जैसे खतरनाक मुजरिमों को लंबे अरसे तक हवालात में बंद रखना ठीक नहीं होता, और मौजूदा हालात में तो ये और भी जरूरी हो गया है कि मैं जल्द अज जल्द अपना काम निपटाने के बाद इस काने मरदूद को हवाला अदालत कर दूं। मौजूदा हालात से आपकी मुराद दाऊद और इसकी बीवी छीमा के साथ पेश आने वाला वाकया है ना? बिल्कुल यही बात है शाहजी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। काना जम्मा हमारी कस्टडी में है, ये बात इसके गिरोह के तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनका सरगना थाने से अदालत से सीधा जेल जाएगा। इसके बावजूद भी इसके दो बंधु माखा और राजू ने हमारे थाने से थोड़े ही फासले पर एक संगीन वारदात की है। ये कोई मामूली बात नहीं। ये वाकया बादी नजर में तो माखा और राजू की हिम्मत और हौसले को जाहिर करता है, लेकिन मैं इससे ज्यादा के बारे में सोच रहा हूँ। आपकी बात में वजन है मलिक साहब, चमन शाह गहरी संजीदगी से बोला। मुझे बताएं आप ज्यादा क्या सोच रहे हैं, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मेरे जहन में जो चल रहा है वो आपकी सोच से किस हद तक मुताबिकत रखता है। मैंने एक गहरी सांस खारिज करने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा। हमने बड़ी तगो-दो के बाद काना जम्मा को गिरफ्तार किया है। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें जंगल के बीचों बीच दुश्वार गुजार सफर करना पड़ा है। बलाखिर हम इसके खुफिया डेरे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक गोली काना जम्मा की टांग में लगी और वो जख्मी हो जाने के बायस बासानी हमारे काबू में आ गया। इसके बाकी साथी हमें झूल देकर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने रात की तारीकी का भरपूर फायदा उठाया और हमारी पहुंच से दूर निकल गए। हम काना जम्मा को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आए। हम बहुत मुतमईन थे कि इस गंदे तालाब की सबसे बड़ी मछली हमारे हाथ लग गई है। इसकी जबान खुलवाने के बाद हमें दूसरे डाकुओं का सुराग भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इस बदबख्त ने अपने साथियों के बारे में कुछ फूट कर नहीं दिया और मैं सांस हमवार करने की गर्ज से मुतवक्किफ हुआ। फिर उन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। और अब माखा और राजू की मजमूम कार्रवाई से यह जाहिर हो गया है कि काना जम्मा के गिरोह के बंदे हमारे थाने के गिर्द नवाह में मौजूद हैं। ये कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं है शाहजी। काना जम्मा की जबान का ताला कैसे खुलवाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ मलिक साहब, वो पुरितमाद लहजे में बोला। आज की रात में इसका खसूसी इलाज करने वाला हूँ। कल का सूरज तुलू होने से पहले मैं इसके अंदर का तफसीली अहवाल जानने के बाद इसकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इस हवाले से आपको फिक्रमंद होने की कतई जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक काना जम्मा के गिरोह के लोगों का मामला है तो इसने पुरसोच अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए बोला, इस हवाले से मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब। इन लोगों की तरफ से कोई भी गैर कानूनी और ओछी हरकत की उम्मीद रखी जा सकती है, लिहाजा हमें कम अज कम आज की रात पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा। कल तो आप काना जम्मा को वैसे भी अदालत में पेश कर देंगे। अगर काना जम्मा के साथी कानून को अपने हाथ में लेने की हिमाकत करेंगे तो हम भी यहाँ कोई चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हुए। मैंने कड़वे मगर पुरअज़्म लहजे में कहा। मैंने अपनी पेशेवराना जिंदगी में ऐसे कई वाकयात भुगताए हैं जब खतरनाक मुजरिमों ने अपने ज़ेर तफ्तीश किसी साथी को छुड़ाने के लिए थाने पर चढ़ाई कर दी थी। मैंने ऐसे दस्तूर शिकन लोगों को हमेशा टफ टाइम दिया है। इधर से अगर एक ईंट आई तो मैंने जवाब में उन पर पत्थरों की बारिश कर दी, नतीजतन इन्हें घुटने टेकते ही बनी। अगर काना जम्मा के आदमियों ने ऐसी कोई हिमाकत की तो उन्हें न सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी बल्कि वो सब पूरी तरह हमारे कब्जे में भी आ जाएंगे। लेकिन एहतियात का तकादा यही है कि हमें अपनी हिफाजत का अमली बंदोबस्त कर लेना चाहिए।
बजा फरमाया आपने। वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से बोला, इस सिलसिले में आपका क्या हुक्म है मलिक साहब? हम दोनों के अलावा हमारे स्टाफ में 4 कांस्टेबल हैं। मैंने अपने मंसूबे से हवलदार को आगाह करते हुए कहा, हम इनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि वो थाने के चारों तरफ रात भर कड़ा पहरा दें। वो सादा लिबास में थाने के बाहर थोड़े फासले पर मौजूद रहेंगे और अपने माहौल पर नजर आने वाली किसी भी गैर मामूली सरगर्मी पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे और अगर कोई बंदा बशर जबरदस्ती थाने की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो बदौर बादो उसे रोकने की कोशिश करेंगे और अगर जरूरत महसूस हुई तो गोली चलाने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे सादा पोश जवान मुसल्लह होंगे। हवलदार ने सवालिया नजर से मुझे देखा। बिल्कुल, मैंने कती लहजे में कहा। फिर पूछा, हमारे थाने में इतनी बंदूकें तो हैं ना? जी, इससे ज्यादा ही हैं, चमन शाह ने बताया। जो भी शख्स जोर जबरदस्ती से थाने के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, इसके बारे में 2 बातें वसूख के साथ कही जा सकती हैं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, नंबर 1, वो कोई शरीफ नफ्स इंसान नहीं होगा। नंबर 2, इसके पास किसी भी नौइयत का आतिशी असला जरूर होगा। ऐसी सूरत में मैंने जरा सा तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसी सूरत में हम अपने स्टाफ को खाली हाथ इन जराइम पेशा लोगों के मद्दे मुकाबिल नहीं ला सकते। ये तो अपनी नफरी को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। बिल्कुल समझ गया मलिक साहब, वो तवाना लहजे में बोला। अगर समझ गए हो तो 4 कांस्टेबल को यहाँ ले आओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो ओके सर कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। आइंदा 15 मिनट के अंदर मैंने इन 4 अफराद को इनकी स्पेशल ड्यूटी के बारे में आगाह करते हुए कहा, नसीर अहमद, तुम थाने की दाई जानिब वाली दीवार के नजदीक मौजूद रहोगे और खादिम हुसैन तुम्हारी ड्यूटी बाईं दीवार के साथ है। अहमद अली, तुम थाने के सामने वाले हिस्से में पहरा दोगे और एहसानुल्लाह, तुम मेरे क्वार्टर की अकबी सिमत निगरानी का काम करोगे। सबने बारी बारी असाबत में गर्दन हिलाकर मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया। मैंने मजीद कहा, तुम सब सादा लिबास में इस मुहिम को सरंजाम दोगे और तुम्हारे पास बंदूकें भी होंगी। रात की तारीकी में कोई टेढ़ा आदमी ही गैर कानूनी अंदाज में थाने में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है और तुम लोगों ने ऐसे ही लोगों को रोकना है। अगर वो तुम्हारी पुकार या ललकार को खातिर भी न लाए तो तुम इस पर गोली चलाने के लिए पूरी तरह आजाद हो। कोई सवाल? मैंने इन 4 को इस नाइट मिशन के बारे में इतनी तफसील से बता दिया था कि किसी ने मुझसे सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। मैंने एहसानुल्लाह को अपने पास रोककर बाकी 3 को जाने के लिए कह दिया। जब वो अपनी ड्यूटी संभालने के लिए मेरे कमरे से निकल गए तो मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, शाह जी, आपकी ड्यूटी थाने के अंदरूनी हिस्से में होगी और नजर खास तौर पर काना जमा पर जमी रहना चाहिए। ठीक है जी मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, मैंने कहा। खाना खाने के बाद मैं इशा की नमाज अदा करूंगा। इस दौरान में तुम हवालाती का मिजाज हाल दरियाफ्त कर लो, फिर हम मिलकर इसका खसूसी इंटरव्यू करेंगे। समझ गया मलिक साहब, वो सर को तफहीमी जंबिश देते हुए बोला। आप बेफिक्र होकर क्वार्टर में जाएं, मैं काना जमा की जबान के टांके खोलने की कोशिश करता हूं। और हाँ, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, तमाम कांस्टेबल से ये भी कह दो कि वो रात का खाना खाने के बाद अपनी मुहिम पर निकलें, क्योंकि रात भर इन्हें चौकन्ना रहकर थाने के बैरूनी माहौल की निगरानी करना है। 4 कांस्टेबल खाना खा चुके हैं मलिक साहब, चमन शाह ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। सिर्फ मैं और आप ही बचे हैं। अच्छी बात है, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। फिर एहसानुल्लाह की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, तुम भी लिबास तब्दील करके बंदूक के साथ मेरे क्वार्टर में आ जाओ
मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कहाँ ड्यूटी करना है। जो हुक्म मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। मैं अपने कमरे से निकलकर क्वार्टर की सिमत बढ़ गया, जो थाने के एक भी हिस्से में बना हुआ था। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज के लिए खड़ा हो गया। जब मैंने नमाज अदा कर ली तो एक अछूता ख्याल मेरे जहन में उभरा। इस ख्याल का ताल्लुक कोट गादी कलां के वसनीक मुजारे हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता से था। जब कांस्टेबल एहसानुल्लाह मेरे क्वार्टर पर आया तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी साइकिल कहाँ है एहसानुल्लाह? थाने में खड़ी है मलिक साहब, उसने बताया। तुम्हारा मिशन दूसरों से मुख्तलिफ है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम यूनिफॉर्म पहनकर अपनी साइकिल पर सवार हो और सीधा कोट गादी कलां रवाना हो जाओ, और अपने साथ बंदूक ले जाने की जरूरत नहीं। मगर आपने थाने में तो ये कहा था कि मैं आपके क्वार्टर के एक भी हिस्से की निगरानी करूंगा। उसने उलझन ज़्यादा नजर से मुझे देखा। हाँ कहा था, लेकिन अब मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या तुम्हें मेरे नए प्रोग्राम से कोई तकलीफ है? नहीं मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। वो तो बस मैंने वैसे ही कह दिया था। बस तो फिर तुम ऐसे ही कोट गादी कलां रवाना हो जाओ, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। तुमने वहां जाकर बाबा हयाता नामी एक मुदारे से मिलना है और उसे अपने साथ लेकर वापस थाने आना है। अगर कोई सवारी मुहैया ना हो सके तो तुम बाबा हयाता को अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठाकर यहाँ लाओगे। तुम सेहतमंद और जवान जहान हो, मुझे यकीन है तुम ये काम बआसानी कर लोगे। वो तो मैं कर लूंगा जनाब, वो मुतज़ब्ज़िब अंदाज में बोला। लेकिन अगर बाबा हयाता ने इतनी रात मेरे साथ आने से इनकार कर दिया तो मैं इससे क्या कहूंगा? तुम्हारे बदन पर सजी हुई पुलिस की वर्दी बाबा हयाता को चूं करने नहीं देगी, और ना ही चां। मैंने एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए कहा, और अगर इसने ज्यादा दबाव लाने की कोशिश की तो कह देना कि मैंने उसे थाने बुलाया है। इससे काना जम्मा और इसके गिरोह के बारे में कुछ पूछताछ करना है। जी मैं समझ गया, वो जल्दी से बोला। समझ गए हो तो फिर मुहिम पर निकल जाओ, मैंने तहमकाना लहजे में कहा। कोशिश करना कि सुबह से पहले तुम बाबा हयाता को लेकर वापस आ जाओ। जी मेरी यही कोशिश होगी, वो फर्म बर्दारी से बोला और मुझे सल्यूट करके रुखसत हो गया। मुजारा हयात मोहम्मद को थाने बुलाने की दो वजूहात थीं। नंबर एक, मौदा कोट गादी कलां दरिया चनाब के किनारे पर वाक़ था। इस छोटे से गांव और दरिया चनाब के दरमियान एक घना जंगल था और मैंने इस जंगल में से काना जमा को गिरफ्तार किया था। इसके गिरोह के तमाम अफराद रात की तारीकी का फायदा उठाकर इधर उधर निकल गए थे। डाकुओं के ठिकाने से नजदीक तरीन इलाका कोट गादी कलां ही था। अगलब इम्कान इस बात का था कि इनमें से बेशतर ने इसी गांव में खुफिया पनाह ली होगी। दाऊद के बयान के मुताबिक बाबा हयाता और इसका खानदान साल साल से कोट गादी कलां में रह रहा था। मैं इसीलिए इस मुदारे से संजीदा गुफ्तगू करने का इरादा रखता था। हो सकता है वो कोई ऐसी राह सुझा दे जो काना जमा के साथियों को छापने में मेरी मदद करे। दूसरी वजह, बाबा हयाता के मेहमान थे। दाऊद और इसकी बीवी चीमा बाबा हयाता से मिलने कोट गादी कलां जाने का इरादा रखते थे, लेकिन काना जमा के गिरोह के दो अफराद ने इन्हें इस बुरी तरह मुंह डाला था कि वो कहीं के नहीं रहे थे। मैं इन्हें अकेले कोट गादी कलां नहीं भेजना चाहता था, मुबादा रास्ते में वो किसी और मुसीबत के शिकार हो जाएं। इंसान अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोचता है, ये अलग बात है कि बाद औकात इसके सोचने के अंदाज में कोई कमी या कुजी बाकी रह जाए, जिसके नतीजे में अच्छा सोचा हुआ भी हस्बे तवक्को नताइज नहीं ला पाता। इसके बरक्स अक्सर ऐसा भी होता है कि नताइज उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल हो जाते हैं। ऐसे मौके के लिए मसलन कहा जाता है, आग लेने गए थे और पैगंबरी मिल गई। बाबा हयाता के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात बतदरीज अपनी निस्फ की जानिब सरक रही थी। मैं अपने क्वार्टर में बैठा मौजूदा हालात पर गौर फिक्र कर रहा था।
वक्फे वक्फे से मैं बाहर निकलकर गर्दोबेश का जायजा ले रहा था। मेरे क्वार्टर के अक्ब में ताहद निगाह तारीकी की चादर ओढ़े खेत ही खेत थे। इस तरफ मुझे किसी किस्म की हलचल दिखाई दी और ना ही कोई गैर मामूली हरकत नजर आई। माहौल पुरसकून और फिजा खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर इज़्तिराब फैला हुआ था। आज की पूरी रात मुझे जाग कर गुजारना थी। ये रात आम रातों से काफी मुख्तलिफ और सनसनीखेज थी। एक भी लम्हे के लिए आंख लगाना मुमकिन नहीं था। इलाके का सबसे खतरनाक डाकू जमालदीन उर्फ काना जमा मेरे थाने के हवालात में बंद था। जब तक दाऊद और छीमा के लूटने की खबर मुझ तक नहीं पहुंची थी, मैं ज़हनी तौर पर काफी मुतमईन था, लेकिन माखा और राजू की सरगर्मियों ने मुझे रेड अलर्ट कर दिया था। जब किसी भी मुजरमों के गिरोह के सरदार को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके गुमाश्ते और चीले चांटे अमूमन कोई भी महफूज ठिकाना देखकर रूपोश हो जाते हैं और कुछ अरसा मंजर आम पर नहीं आते। लेकिन माखा और राजू ने इसके बरक्स रद्द अमल का इजहार किया था। न सिर्फ उन्होंने छुपने की जरूरत महसूस नहीं की थी, बल्कि वो मेरे थाने के इंतहाई नजदीक राहज़नी की वारदातें भी करते फिर रहे थे। इनकी ये दीदा दलेरी मेरे लिए किसी कड़े चैलेंज से कम नहीं थी, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो बज़ात और कमीना खसरत जराइम पेशा लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। थोड़ी देर पहले तक ट्रायल रूम की जानिब से काना जम्मा के चीखने चिल्लाने और बिलबिलाने की आवाजें बड़े तवातुर से आ रही थी, लेकिन अब इस तरफ खामोशी छा चुकी थी। इस पुरअसरार सन्नाटे का वाज़ेह मतलब यही था कि चमन शाह ने हवालाते की दबान पर पड़े हुए तमाम कफल खोल डाले थे और इसे किसी रिकॉर्ड के मानद बजने के काबिल बना दिया था। मैं अपने क्वार्टर से निकला और थाने की जानिब बढ़ गया। जब मैं बरामदे से गुजरा तो मैंने दाऊद और छीमा को जागता हुआ पाया। इनकी चारपाइयां बरामदे के एक दूर अफ्तादा हिस्से में बिछाई गई थीं और वो दोनों अपनी चारपाइयों पर बैठे बातें कर रहे थे। क्या बात है? मैंने इनके नजदीक जाकर रसानियत भरे लहजे में पूछा। तुम लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही? थानेदार साहब, थाने के अंदरूनी हिस्से से किसी बंदे के रोने धोने की कर्ब में डूबी हुई आवाजें मुसलसल आ रही हैं। दाऊद ने सरासीमा लहजे में जवाब दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी इंसान को कुंद छुरी से ज़िबा करने की कोशिश की जा रही हो। इस किस्म की भयानक सूरत हाल में क्या खाक नींद आएगी सरकार? अब तो वो शोर शराबा खत्म हो चुका है। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। तुम चाहो तो आराम से सो सकते हो। वैसे वो था क्या थानेदार साहब? छीमा ने सरासीमा लहजे में दरियाफ्त किया। वो काना जमा की आहो बका थी बीबी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। हवलदार इससे गिरोह के दूसरे लोगों के बारे में पूछताछ कर रहा था और वो काना शैतान अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं था, लिहाजा हवलदार को थोड़ी सख्ती करना पड़ी। बस इतनी सी बात है। आप इसे इतनी सी बात कह रहे हैं थानेदार साहब? वो सहमी हुई नजर से मुझे देखते हुए बोली। हवलदार की थोड़ी सी सख्ती से अगर किसी मुजरिम का ये हाल हो जाता है तो जब हवलदार ज्यादा सख्ती करता होगा तो बेचारा मुजरिम अपनी जान ही से हाथ धो बैठता होगा। ऐसी बात नहीं है बीबी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। हम सिर्फ खतरनाक मुजरिमों की जबान खुलवाने के लिए ही तफ्तीशी हरबे आजमाते हैं और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि इन तफ्तीशी मराहिल से गुजरने के दौरान में इनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो। ये सब हमारी मजबूरी है, क्योंकि जराइम पेशा अफराद आप लोगों की तरह सीधे और शरीफ नफ्स नहीं होते कि एक तमाचा खाने के बाद वो अपने जराइम का इतराफ कर लें। बहरहाल अब काना जम्मा की मातमी आवाज आप लोगों का सुकून बर्बाद नहीं करेगी। तुम सोने की कोशिश करो। ठीक है थानेदार साहब, दाऊद ने मोतदिल अंदाज में कहा। आपकी मेहरबानी है जो हमें अपने थाने में रात गुजारने की इजाजत दे दी। बाकी बातें सुबह होंगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और ट्रायल रूम की जानिब बढ़ गया। मुझ पर निगाह पड़ी तो चमन शाह ने कहा, मलिक साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं अभी आप ही को बुलाने जा रहा था। इसका मतलब है तुमने काने जिन को बोलने के लिए आमादा कर दिया है? मैंने मानीखेज अंदाज में कहा, जी बिल्कुल, ये बजने को तो तैयार है मगर अपनी मर्जी के मुताबिक। चमन शाह ने बताया, इसका कहना है ये अपने गिरोह के आदमियों के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता।
ऐसा क्यों जम्मा? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जब वो सब तुम्हारे बंदे हैं तो फिर तुम इनके बारे में क्यों नहीं जानते? क्या तुम हमें इतना ही बेवकूफ समझते हो हैं? थानेदार साहब, वो नुकहत भरी आवाज में बोला, आपके हवलदार ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अगर मैं अपने गिरोह के लोगों के ठिकानों से वाकिफ होता तो जरूर बता देता। सच्ची बात तो यह है कि हमारा सिर्फ एक ही खुफिया ठिकाना था जहां से आपने मुझे गिरफ्तार किया था, और वो भी मेरी जख्मी होने की वजह से, वरना। वो बोलते बोलते अचानक थमा तो मैंने गरजदार आवाज में इस्तफसार किया, वरना तुम क्या कर लेते काने सुअर? अगर मेरे साथी अंधेरे जंगल में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह अजीब से तकब्बराना अंदाज में बोला, टांग में गोली लग जाने की वजह से मैं मजबूर हो गया था, वरना आप मेरी धूल को भी नहीं पा सकते थे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मैंने नफरत भरी नजर से उसे घूरा और मामदाना लहजे में कहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी जख्मी टांग का लिहाज करते हुए तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करूंगा। अगर तुमने माखा, राजू और दीगर डाकुओं के पते ठिकाने के बारे में ना बताया तो मुझे मजबूरन तुम्हारी टांग के जख्म पर मिर्चें भरवाना पड़ेंगी। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया थानेदार साहब। वो बेदारी से बोला, मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे लोग इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं। वो छुपे हुए नहीं बल्कि बड़ी जुर्रत से थाने के आसपास वारदातें करते फिर रहे हैं। मैंने तंदिया लहजे में कहा, मेरा इशारा माखा और राजू की तरफ है। तुम्हें हवलदार ने बताया होगा कि आज शाम इन दोनों ने 2 मुसाफिरों को लूटा है। वो इनके तलाई देवरात और नकदी सब ले गए। मुतासरा मियां बीवी के पास कहीं जाने का किराया भी नहीं बचा था, और वो बेचारे शाम के बाद जाते भी कहाँ। मैंने इन पर तरस खाकर इन्हें थाने ही में रात गुजारने की इजाजत दे दी है। वो इस वक्त बरामदे में चारपाइयों पर सो रहे हैं। ये तो आपने बड़ी नेकी का काम किया थानेदार साहब, इसने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। किसी भूले भटके और लुटे पुटे मुसाफिर को पनाह देना तो एक अजीम कारनामा है सरकार। जब आपको ये पता चल चुका है कि माखा और राजू थाने के आसपास ही कहीं मौजूद हैं, तो आप अपने अमले के तमाम लोगों को थाने की गिरदोनवा में फैला दें। इस तरह इन्हें गिरफ्तार करने में आपको आसानी होगी। काना जमा की बातों से तहकीर झलकती थी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर ससरती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं काना जमा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे किस वक्त क्या करना है। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, और मेरी तरफ से यह आखिरी मोहलत है। अच्छी तरह सोच लो कि तुमने कानून के साथ ताउन करना है या हठ धर्मी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुश्किलात में इजाफा करना है। 1 घंटे के बाद अगर तुमने मेरे सवाल का माकूल जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जख्मी टांग के घाव में पिसी हुई मिर्चें भरवाने में किसी पसोपेश से काम नहीं लूंगा। काना जम्मा के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। मुझे इसकी आंखों में भी सरासीनगी हलकोरे लेती नजर आई। मैंने इस पर एक मानदाना निगाह डाली और ट्रायल रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गया। 5 मिनट के बाद हवलदार चमन शाह भी मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने गंभीर लहजे में पूछा, मलिक साहब, आपको क्या लगता है ये काना दज्जाल हकीकत बयानी से काम ले रहा है या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? शाह जी, एक बात जहन में रखें कि काना जमा कोई सड़क छाप मामूली गुंडा नहीं है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, वो एक बदनाम जमाना डाकू, लुटेरा, कातिल और जाने क्या क्या है। इस लेवल के मुजरिम बड़े सख्त जान और ढीठ नस्ल के होते हैं, इसलिए वो आसानी से जबान नहीं खोलते। गिरफ्तारी, थाना, कचहरी और जेल इनकी जिंदगी का लाजमी जुजू तस्वर किए जाते हैं। चुनाचा काना जमा के बारे में सरेदस्त कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अलबत्ता मैं समझता हूं इसकी टांग के जख्म में मिर्चें भरवाने वाला आइडिया जरूर काम करेगा। वो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सच्चाई खुद ब खुद इसकी जबान से जारी हो जाएगी। यानी 1 घंटे के बाद हम हकायक तक रसाई हासिल करने वाले हैं? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने अटल लहजे में जवाब दिया।
आप इस दौरान में पिसी हुई मिर्चों का इंतजाम कर लें। हम जरूरत पड़ने पर टांग के घाव के अलावा इसकी दोनों आंखों में भी मिर्चें भर सकते हैं। इन लम्हात में मेरी आंखों और आवाज से सफाकी टपक रही थी। हवलदार ने असाबत में सर हिलाया और सपाट आवाज में बोला, वो इब्न इब्लीस सही मानों में ऐसे ही बदतरीन सलूक का मुस्तहिक है। जहां तक पिसी हुई मिर्चों का मामला है तो वो मेरे पास वाफिर मिकदार में रखी हुई हैं। वेरी गुड, मैंने तौसीफी नजर से उसे देखा। वैसे काना जम्मा का आइडिया इतना बुरा भी नहीं कि हम उसे यकसर नजरअंदाज कर दें, चमन शाह ने कहा। कौन सा आइडिया? बेसाख्ता मैंने पूछ लिया। वही माखा और राजू की तलाश में अपने अमले को सरगर्म अमल करना, चमन शाह ने जवाब दिया। हम इस आइडिया को कतई नजरअंदाज नहीं कर रहे चमन शाह, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस वक्त हम दोनों के अलावा हमारे थाने का सारा अमला बाहर स्पेशल ड्यूटी दे रहा है। हमें 1 घंटे तक इंतजार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मिर्चों वाला तरीका इलाज कान जमा पर जरूर असर करेगा। और अगर मैं सांस हमवार करने की गर्ज से मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अगर वाकईतन काना जम्मा अपने आदमियों के ठिकाने और इनके महल वकू की खबर नहीं रखता तो फिर हमें मजबूरन माखा और राजू की तलाश में कुर्ब जवार का इलाका खोजना होगा। इन दोनों बदमाशों का हमारे हत्थे चढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने दाऊद और छीमा से वादा किया है कि इस शाम उन्होंने जो कुछ भी खोया है वो मैं उन्हें वापस लाकर दूंगा, और ये काम इसी वक्त मुमकिन होगा अगर माखा और राजू को हम छापने में कामयाब हो जाएं। हवलदार चंद लम्हे खामोश रहने के बाद ताईदी अंदाज में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। हमारे दरमियान हालात हादरा पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही था कि कांस्टेबल अहमद अली कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अहमद अली को थाने के सामने वाले इलाके में तैनात कर रखा था। वो वहां से थाने के गेट और उसके आसपास के हिस्से पर निगाह रखे हुए था। क्या हो गया अहमद अली? मैंने कांस्टेबल को बुखलाहट में मुब्तला देखकर इस्तफसार किया। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुमने किसी पिछल पैरी को देख लिया है? नहीं मलिक साहब, वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैंने कड़े लहजे में पूछा। वो अपने अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, थाने से 1 मील दूर छोटे चौधरी रब नवाज के तूड़ी भूसे के गोदाम में आग लग गई है। ये एक हंगामी सूरत हाल है जनाब। क्या हमें फौरन वहां पहुंचकर इनकी मदद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैंने रूखे और दो टोक अंदाज में जवाब दिया। ये थाना है, फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं कि हम 1 मील दूर की ही तूड़ी के जखीरे में लगी आग को बुझाने के लिए निकल खड़े होंगे। इस काम के लिए चौधरी रब नवाज के पास अफरादी कुव्वत की कमी नहीं होगी। वो अपनी रियाया को आग बुझाने के काम पर लगा सकता है। वैसे भी आतिशज़दगी के इस वाक़े में किसी इंसानी जान के जाने का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, इसलिए चौधरी रब नवाज को इस मामले से खुद ही निपटना चाहिए। और जहां तक हंगामी सूरत हाल की बात है तो क्या हम थाने में बैठे और तुम लोग बाहर ठंडे ठार मौसम में खामखा ही पहरा दे रहे हो? नहीं मलिक साहब, आपने हमें एक अहम काम सौंप रखा है। वो जल्दी से बोला, तो फिर तुम इसी अहम काम पर अपनी तवज्जो मरकूज रखो। मैंने हतमी लहजे में कहा, अगर चौधरी रब नवाज के भूसे का ढेर जलकर राख में तब्दील हो गया तो इसकी सेहत और जेब पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लोगों की गफलत से कोई जराइम पेशा शख्स थाने के अंदर घुस आया तो समझ लो मेरी सारी मेहनत गई खूब खाते। बात समझ में आ रही है या घोल कर पिलाऊं? मैं चंगी तरह समझ गया मलिक साहब। वो मादरत खाना अंदाज में बोला, मुझे माफ कर दें, मैं अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा हूं। शाबाश। इतनी डांट फटकार के बाद मैंने कांस्टेबल अहमद अली के अज़ाइम को सराहना जरूरी जाना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अहमद अली, तुम एक मेहनती और फर्जशनास पुलिस आहलकार हो। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सल्यूट करने के बाद तेज कदमों से चलते हुए कमरे से निकल गया। मलिक साहब, मुझे तो ये माखा, राजू और इनके दीगर साथियों की चाल लग रही है। कांस्टेबल के जाने के बाद हवलदार चमन शाह ने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो लोग थाने के अंदरूनी मामलात से हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं ताकि इन्हें किसी मजमून कार्रवाई का मौका मिल सके। आपका क्या ख्याल है जनाब? शाह जी, मैं भी आप ही के अंदाज में सोच रहा हूँ, मैंने गंभीर लहजे में जवाब दिया।
वो लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी तवज्जो का पहला मरकज सिर्फ और सिर्फ काना जम्मा ही है, बाकी सब मामलात इसके बाद। मैं लम्हे भर को रुका, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, आपने देख ही लिया है मैंने अहमद अली को किस किस्म का जवाब दिया है। मेरे वाशगाफ अल्फाज से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मेरी पहली तरजीह क्या है। जी बिल्कुल, वो सर को असाबती जंबिश देते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ मलिक साहब, शायद आपने काना जम्मा के मशवरे की तह में नहीं झांका शाहजी, थोड़ी वजाहत कर दें तो मेहरबानी होगी जनाब। वो साइस्ता लहजे में बोला, आपका इशारा किस तरफ है? इसने थोड़ी देर पहले हमें मशवरा दिया था कि जब हमारे बकौल माखा और राजू थाने के कर्ब जवार में ही मौजूद हैं तो फिर हमें अपने अमले के तमाम अफराद को इनकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए आस पास के इलाके में फैला देना चाहिए। मैंने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा, यानी इसकी दिली ख्वाहिश है कि इस थाने का सारा अमला बाहर चला जाए, ताकि अगर इसके जहन में कोई खतरनाक शैतानी मंसूबा पल रहा है तो इस पर अमल करना आसान हो जाए। ओ, हवलदार बेसाख्ता इज़तरारी सांस छोड़ते हुए बोला, इस तरफ तो वाकई मेरा ध्यान नहीं गया था। ये काना दज्जाल तो बहुत ही चालबाज और मंसूबा साज मुजरिम है मलिक साहब, लेकिन हम इनकी कोई चाल और कोई मंसूबा फलने नहीं देंगे शाहजी, मैंने चटानी लहजे में कहा। वो तहदिल से बोला, इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान संजीदा नौयत की गुफ्तगू चल रही थी कि हवलदार ने मुझसे पूछ लिया, मलिक साहब आपने एहसानुल्लाह को कोट गाजी कलां क्यों भेजा है? अभी तक मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि मैं चमन शाह को अपने प्रोग्राम की इस तब्दीली के बारे में बताता। क्वार्टर से निकलने के बाद तो मैं काना जम्मा के साथ मसरूफ हो गया था। थाने के अकबी जानिब मेरा क्वार्टर है और मैंने पूरी रात जागने का फैसला कर लिया है, इसलिए इस तरफ किसी और की ड्यूटी की जरूरत नहीं थी। मैंने हवलदार के सवाल के जवाब में बताया। और एहसानुल्लाह को कोट गाजी कलां भेजने का दूसरा सबब यह है कि हमने काना जम्मा को इस गांव के नजदीकी जंगल से गिरफ्तार किया है और इस लुटे फुटे परदेसी जोड़े का मेजबान बाबा हयाता वहां का पुराना रहने वाला है। मैं इस मुजारे को थाने बुलाकर थोड़ी तफ्तीश करना चाहता हूँ और इन दोनों मेहमानों को इनके मुजारे के सुपुर्द करना भी जरूरी है। इस वक्त बाहर की जो सूरत हाल है, इसमें दाऊद और छीमा का अकेले कोट गाजी कलां की तरफ जाना ठीक नहीं। वो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। अब की बार अगर डाकुओं ने इन्हें रास्ते में कहीं घेर लिया तो उन्हें क्या देंगे? इन दोनों को खाली पाकर डाकू इन्हें जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तशवीश भरे लहजे में बोला, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप बाबा हयाता से किस किस्म की पूछताछ करना चाहते हैं। मुझे शक है कि काना जमा के साथियों में से बाद में कोट गाजी कलां में पनाह ली होगी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, बाबा हयाता कई पुश्तों से वहां का वसनीक है, वो डाकुओं के इस गिरोह के बारे में यकीन गहरी मालूमात रखता होगा। और जहां तक आधी रात को इस मज़ारे को थाने बुलाकर तफ्तीश करने का सवाल है, तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, इस बारे में मुझे खुद भी कुछ मालूम नहीं है चमन शाह। बस मैं जैसे ही ईशा की नमाज से फारिग हुआ, मेरे जहन में बाबा हयाता से मुलाकात करने का ख्याल पैदा हुआ। यहाँ थाने में जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए मैं इस वक्त तक बैरूनी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक मैं इस काने सुअर डाकुओं के सरदार को हवाला अदालत नहीं कर देता। काना जमा एक भारी जिम्मेदारी के तौर पर आपके पेशे वाराना फराइज का हिस्सा बना हुआ है। हवलदार ने मुतदल अंदाज में कहा, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ मलिक साहब। मुझे कभी उम्मीद है कि बाबा हयाता के अंदर से कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो काना जमा के मामले में हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे जब भी नमाज के दौरान में या नमाज के बाद अचानक कोई ख्याल आया तो वो कभी रायगा नहीं गया। ऐसी सोच का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आसान अल्फाज में यूं समझ लो कि कुदरत ऐसे इशारों से मेरी मदद कर रही होती है और कबल अद वक्त ऐसे मामलात की वजाहत करना मुमकिन नहीं होता। हवलदार ने असाबत में गर्दन हिलाकर मेरी बात को समझ लेने की तस्दीक की, फिर चौंके हुए लहजे में कहा, मलिक साहब ये आवाज कैसी है? मैंने चमन शाह के इस्तफसार पर ध्यान दिया तो मुझे बरामदे की जानिब से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता किसी शय को खकोड़ रहा हो।
मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, आपने गलत नहीं सुना शाहजी, ये आवाज बरामदे की तरफ से आ रही है। इस वक्त आधी रात का अमल था और थाने की चार दीवारी के अंदर मेरे और हवलदार के सिवा और कोई मौजूद नहीं था और हम दोनों मेरे कमरे में बैठे हुए थे। हमारा दीगर स्टाफ यानी 4 कांस्टेबल्स नसीर अहमद, अहमद अली, खादिम हुसैन और एहसानुल्लाह आज की रात थाने के बाहर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। मैं जाकर देखता हूँ मलिक साहब। हवलदार उठकर खड़ा होते हुए बोला, कहीं कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली किसी खाने वगैरह की तलाश में अंदर न घुस आए हों। मैंने असाबत में सर हिलाने पर इत्तफा किया। चमन शाह मेरे कमरे से निकल गया और 10 मिनट से भी पहले वापस आ गया और दोबारा मेरे सामने बैठने के बाद एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, हमारे दोनों मेहमान अभी तक जाग रहे हैं मलिक साहब। वो चारपाइयों पर बैठे अपने अटैची केस को खोलकर इसमें कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इनके करीब जाकर दाऊद से पूछा, क्या तुम लोगों को नींद नहीं आ रही? दाऊद ने अटैची केस को बंद करते हुए कहा, जनाब, हम चंद घंटे पहले जिन हालात से गुजरे हैं, इसमें इंसान की भूख, प्यास, नींद, सुकून सब कुछ उड़ जाता है। हमने जहर मार करके थोड़ा खाना तो खा लिया है, मगर बावजूद कोशिश के भी नींद नहीं आ रही। इसने अटैची केस को अपनी बीवी की जाने बढ़ाने के बाद बात जारी रखते हुए कहा, हम सोने के लिए जैसी ही आंखें बंद करते हैं, वो दोनों घुड़सवार डाकू हमारे सामने आ खड़े होते हैं। वो अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से हमें घूरते हुए अपनी बंदूकें हम पर तानकर गजबनाक लहजे में कहते हैं, सब कुछ निकाल दो। इसके साथ ही हम हड़बड़ाकर आंखें खोल देते हैं। बस पिछले 5-6 घंटे से हम इसी अजियतनाक कैफियत से गुजर रहे हैं जनाब आला, और थोड़ी देर पहले तक तो आप लोगों की तफ्तीश ने भी हमें सोने का मौका नहीं दिया। चीमा ने अटैची केस को वापस चारपाई के नीचे रखते हुए बरहमी भरे लहजे में कहा, कोई भला किसी इंसान पर इतना ज्यादा तशद्दुद भी करता है? थानेदार साहब ने हमें बताया था कि काना जम्मा की जबान खुलवाने के लिए इस पर सख्ती की जा रही है। अगर इस सख्ती से इसकी जान चली जाती तो? हम काना जम्मा को मौत के घाट उतारने के लिए ये तफ्तीश नहीं कर रहे बीबी। मैंने वाशगाफ अल्फाज में नसीम उर्फ चीमा से कहा, इसके अंदर से जो मालूमात खारिज होंगी वो हमें इसके गिरोह के दूसरे आदमियों तक पहुंचने में मदद देंगी। और ये मत भूलो कि काना जमा के इन्हीं आदमियों में राजू और माखा भी शामिल हैं। जब तक ये दोनों डाकू हमारे हत्थे नहीं चढ़ेंगे, तुम्हारे तलाई जेवरात और दाऊद की तगड़ी रकम की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी, चीमा थूक निगलते हुए बोली। दाऊद ने कहा, ठीक है हवलदार साहब, आप अपना काम जारी रखें। हमें तो बस ये रात यहाँ गुजारना है। कल सुबह हम थाने से रवाना हो जाएंगे। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक अफसरदा सांस खारिज की, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, हमारा जो माल असबाब चला गया, इसका हमें दुख तो बहुत है, लेकिन शुक्र सोने रब का कि हमारी जान बच गई। सियाने कह गए हैं कि जान है तो जहान है। सियाने गलत नहीं कहते दाऊद। मैंने इससे कहा, तुम लोग आराम से सो जाओ और हमें भी अपना काम करने दो। हवलदार ने अपनी बात खत्म करने के बाद मेरी तरफ देखते हुए कहा, मलिक साहब, मैं इन्हें सोने की ताकीद तो कराया हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग आज की रात एक पल के लिए भी सो सकेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है शाहजी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसके 2 असबाब हैं मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला। जवाब देने से पहले मुझे आपसे एक दरखास्त करना है। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, ऐसी कौन सी दरखास्त है शाहजी? चंद लम्हात के तदब्बुर की कैफियत में मुब्तला रहने के बाद वो गोया हुआ, आप मेरा हद से ज्यादा एहतराम करते हैं, जबकि अमले के दूसरे अफराद के साथ आपका रवैया जुदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुदा न खास्ता इनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। आप अपने नीचे काम करने वाले तमाम अफराद के साथ नरमी और इखलाक का बर्ताव करते हैं, मगर मेरे साथ आपका सलूक इनसे मुख्तलिफ है, जिससे बाद औकात मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगती है। शाहजी, मैंने आपकी उलझन की तह तक रसाई हासिल कर ली है। मैंने चमन शाह के चेहरे पर निगाह जमाकर ठहरे हुए लहजे में कहा, एक इंसान पर हर दूसरे इंसान का एहतराम वाजिब है और मैं इस नुक्ते को हमेशा जहन में रखता हूँ।
जराइम पेशा और टेढ़े लोगों को डील करते हुए बाद औकात जारहियत और बदइखलाकी जरूरी हो जाती है। बाकी आम हालात में मैं किसी से भी मिलते वक्त इसकी इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखता हूँ। जहां तक आपका मामला है शाहजी, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने हवलदार की आंखों में देखा, फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। आप सैयदजादे हैं। आपका नस्बनामा कहीं न कहीं पीछे जाकर अहले बैत से जुड़ता है। मैं सादात का बहुत एहतराम करता हूँ शाहजी, बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है मलिक साहब। वो अकीदत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, आपने बड़े अहम नुक्ते को पकड़ रखा है। मैं इससे ज्यादा मजीद और कुछ नहीं कह सकता। तो फिर इन दो असबाब के बारे में मुझे कौन बताएगा जिसका थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो मजीद कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया है। मेरा यह मतलब नहीं था मलिक साहब। वो इतरारी लहजे में बोला, तो फिर बताएं। मैंने कहा, इन मियां बीवी के रात भर ना सो सकने के दो असबाब कौन से हैं? नंबर 1, इनके साथ आज शाम में जो सानिया पेश आया है वो दाऊद और छीमा के आसाब को तोड़ने और इनके हवास को झंझोड़ने के लिए काफी है। वो वजाहत करते हुए बोला। नंबर 2, 1 घंटे की मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर काना जम्मा ने जबान ना खोली तो हम उसका जो हशर करने जा रहे हैं वो इसे बेदरेग चीखने पर मजबूर कर देगा और इस मरदूद की अजियतनाक चीखें थाने की छत और दरो दीवार को हिलाकर रख देंगी और काना जम्मा जिस दर्द भरे अंदाज में चीखे और चिल्लाएगा वो समा इन्हें क्या खाक सोने देगा। आपकी बात तो 16 आने सही है शाहजी, मैंने इत्तेफाक आमीज लहजे में कहा। कल का सूरज तुलू होने से पहले काना जम्मा की जबान का कफल खुलना जरूरी है ताकि मैं कल ही इस केस का चालान तैयार करके इस शैतान को अदालत में पेश कर दूं। मैंने तो पहले यही सोचा था कि काना जम्मा को 6 फरवरी की सुबह हवाला अदालत करूंगा, मगर शाम से अब तक थाने के गिर्द नवा में जो शर्मंगेज बदलाव देखने को मिल रहा है वो इस बात का मुतकावी है कि यकचश्म डाकुओं के सरदार को ज्यादा अरसे तक कस्टडी में न रखा जाए, वरना कोई भी संजीदा पेचीदगी पैदा हो सकती है। मलिक साहब, अल्लाह का शुक्र है कि गोली काना जम्मा की टांग को घायल करते हुए आगे निकल गई थी। हवलदार ने मोतदिल अंदाज में कहा, अगर यही गोली इस किरान के गोश्त के अंदर धंस जाती तो मजबूरन हमें गिरफ्तारी के बाद इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता ताकि ऑपरेशन करके गोली को इसके बदन से बाहर निकाला जा सके। ये तो हमने खुद ही इसके जख्म की मरहम पट्टी करके काम चला लिया है, बसूरत दीगर इसका अस्पताल जाना लाजमी था और इस सूरत में थाने की बनिस्बत इस पर हमारी गिरफ्त कदरे कमजोर होती। आपका ये वाकयाती तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है शाहजी, मैंने असाबत में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन अब भी सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अगरचे वो मनहूस शख्स इस वक्त हवालात के अंदर बंद है, लेकिन मैं थाने की बैरूनी फिजा में एक अजीब सी बेकैफी और बेनाम सी हलचल महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है इसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। कुछ नहीं होगा मलिक साहब, चमन शाह ने पुरइत्माद लहजे में कहा, अल्लाह खैर करेगा। हम पूरी तरह मुस्तैद और तैयार हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ भी तो हम बासानी इस नागहानी अफ्ताब से निपट लेंगे। बिल्कुल, मैंने ठोस लहजे में कहा। मैंने जमालुद्दीन उर्फ काना जम्मा को 1 घंटे की मोहलत दी थी ताकि वो जबान खोलने या बंद रखने के हवाले से अच्छी तरह सोचकर कोई मुनासिब सा फैसला कर ले। ये तो तय था अगर इसने मुझसे तावन ना किया तो मैं वादे के मुताबिक इसकी टांग के जख्म में चिल्ली पाउडर भरने में किसी पसोपेश से काम नहीं लेने वाला था। काना जम्मा जैसे नापाक मुआशरती नासूरों की जराही का मुझे बड़ा वसी तजर्बा था और इस सिलसिले में मैं खासा बेरहम और शफाक भी साबित हुआ था। 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि हवलदार दोबारा मेरे कमरे में आ गया। मैं रात के इब्तिदाई हिस्से से टेक कर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। हवलदार थोड़ी देर पहले थाने के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में एक राउंड लगाने गया था
वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने इस्तफसार किया, शाह जी बाहर की क्या खबरें हैं? थाने के बाहर तो मुकम्मल सुकून और सन्नाटा है। इसने बताया, अलबत्ता शाम वाली खुनकी ने बाकायदा ठंडक की शक्ल इख्तियार कर ली है। फरवरी का पूरा महीना तो ऐसे ही चलेगा शाह जी। कहीं जाकर मार्च के वक्त में मौसम खुलेगा और सरमा देखते ही देखते बहार में बदल जाएगा। मैंने एक तवील जमाही लेने के बाद कहा और पूछा, हमारे मेहमानों का क्या हाल है? दोनों चुपचाप अपनी चारपाइयों पर लेटे हुए हैं। हवलदार ने जवाब दिया, वो वाकई सो चुके हैं या ऐसे ही आंखें बंद किए नींद की आमद का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता। अब की बार मैंने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये आपने बहुत अच्छा किया शाह जी, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। वो आंखें मीच कर भी लेटे रहे तो इन्हें नींद आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बात के इख्तिताम पर मैंने एक मर्तबा फिर जमाही ली। इन्हें नींद आएगी या नहीं, मगर मैं देख रहा हूं आप इस वक्त एक भरपूर नींद की अशद जरूरत महसूस कर रहे हैं। हवलदार ने मानीखेज लहजे में कहा, कोई कांस्टेबल तो यहाँ मौजूद नहीं, मैं खुद ही गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। इससे नींद और सर्दी दोनों भाग जाएंगे। इसके बाद हम अपने खासुल खास मिशन में मसरूफ हो जाएंगे। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, कौन सा मिशन? मैं काना जम्मा की घायल टांग में पिसी हुई मिर्चें भरने वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मलिक साहब। आपने इसे सोचने के लिए 1 घंटे की मोहलत दी थी। ये वक्त पूरा होने में चंद मिनट बाकी हैं, तो आपको यकीन है कि वो खबीस जबान नहीं खोलेगा? मैंने सवालिया नजर से हवलदार को देखा। इसका इम्कान तो बहरहाल है ना? हाँ, ऐसा मुमकिन है, मैंने ताईदी अंदाज में कहा, और ऐसा करके वो अपनी तकलीफ को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। मैं चाय का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। अगर दाऊद और छीमा मुझे बेदार हालत में मिले तो इन्हें भी चाय की दावत दे दूंगा। आखिर को वो दोनों मियां बीवी हमारे मेहमान हैं, भले एक रात ही के क्यों ना सही। शाह जी, आपकी बात से मेरे जहन में एक आइडिया आया है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। वो तुरंत मुस्तफसिर हुआ, कैसा आइडिया मलिक साहब? अगर हमारे मेहमान वाकई जाग रहे हों और इन्हें चाय की तलब भी महसूस हो रही हो तो ये नेक काम छीमा से भी लिया जा सकता है। मैंने कहा, मेरा मतलब है चाय बनाने का काम। गुड आइडिया। इसने तौसीफी नजर से मुझे देखा। ये काम तो वाकयातन किसी खातून ही को ज्यादा जेब देता है। खैर, मैं इन्हें चेक करता हूँ। अगर वो सो चुके हूँ तो फिर इन्हें जगाने की गलती नहीं करना शाह जी, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। समझिए मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कबल इसके कि हवलदार चमन शाह मेरे कमरे से बाहर कदम रखता, कांस्टेबल खादिम हुसैन बौखलाहट भरे अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर हवाइयां सी। लाश खादिम हुसैन, जनाब, आपने मेरी ड्यूटी थाने के बाएं जाने वाले हिस्से में लगाई थी। वो सरासीमा लहजे में वजाहत करते हुए बोला। मैं पूरी तरह चौकन्ना होकर वहां पहरा दे रहा था कि मैंने थोड़े फासले पर किसी को लेटे हुए देखा। आप जानते हैं, हमारे थाने की चारों तरफ दूर दूर तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ है। कुछ अरसे पहले ही मकई की फसल उतरी है और अब वो खेत खाली पड़े हैं। मुझे इस बात पर हैरत हुई कि आधी रात को इस खेत में कौन सोया हुआ है, और वो भी सर्दियों के मौसम में। मैं वहां काफी देर से ड्यूटी दे रहा था और इससे पहले मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब मैंने देख लिया तो फिर ये पता लगाना जरूरी हो गया कि आखिर वो बंदा है कौन, और सर्दी की ठंडी ठार रात में वो यूं खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहा है। वो एक ही सांस में बोलता चला गया था, लिहाजा तवक्कुफ लाजिम ठहरा था। इसने 2-3 गहरी सांसें ली, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। मलिक साहब, राइफल मेरे पास थी, इसलिए मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। फिर आपने इजाजत भी दे रखी थी कि अगर कोई मशकूक बंदा थाने के आसपास नजर आए तो उसे काबू करने के लिए जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाई जा सकती है।
इन लम्हात में वो सोया हुआ बंदा मुझे मशकूक सा लगा था, इसलिए मैं राइफल सौंते बड़ी बहादुरी से इसके नजदीक पहुंच गया और तहक माना लहजे में पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल करते हुए मैंने उसे मुसलसल अपनी राइफल के निशाने पर रखा हुआ था, ताकि अगर वो कोई चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश करे तो मैं इसके बदन के किसी महफूज हिस्से पर फायर कर सकूं। लेकिन जब मेरे कई बार पुकारने पर भी इस बंदे के वजूद में कोई हरकत पैदा नहीं हुई तो मैंने इसे हिला झुला कर देखा। तभी ये इंकशाफ हुआ कि वो तो मर चुका है। खादिम हुसैन अपनी बात मुकम्मल करने के बाद बड़ी सहमी नजर से मुझे तकने लगा तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुमने इस मुर्दा शख्स का चेहरा देखा है? जी मलिक साहब, वो सर को असाबती जंबिश देते हुए खौफजदा लहजे में बोला, देखा है। क्या तुम उसे पहचानते हो? नहीं जनाब, मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा। शाह जी, आप खादिम हुसैन के साथ जाकर जरा इस लाश का इब्तदाई जायजा लें ताकि बुनियादी मालूमात सामने आ सकें। वक़्वे की बाकायदा कार्रवाई सूरज उगने के बाद रोशनी में की जाएगी। आप यहाँ के लोगों को मुझसे ज्यादा जानते और पहचानते हैं, इसीलिए मैं आपको भेज रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि आप इस बंदे की शनाख्त कर लें, जिसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। और हाँ, लालटेन भी साथ ले जाएं। ओके मलिक साहब, मैं वक़्वे की जानिब रवाना हो रहा हूँ, चमन शाह ने पुरअज़्म लहजे में कहा। और चाय के लिए माजरत चाहूंगा। अब चाय की जरूरत नहीं रही शाह जी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। खादिम हुसैन की इतला ने तो मेरी नींद उड़ा दी है। चमन शाह ने मानी खेज अंदाज में मुझे देखा, फिर खादिम हुसैन के हमरा मेरे कमरे से निकल गया। मैं इनके साथ थाने के गेट तक आया। जब वो मेरी नजर से ओझल होकर तारीकी का हिस्सा बन गए तो भी मैं इन्हीं की समत देखता रहा, क्योंकि खादिम हुसैन के हाथ में मौजूद लालटेन मुझे तादेर नजर आती रही। हवलदार चमन शाह एक तजर्बाकार और काबिल भरोसा पुलिस एहलकार था। उसे पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमात इंजाम देते हुए एक तवील अरसा हो गया था। मुझे ये बताने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि इन 4 माह में मैंने चमन शाह से काम की कई एक बातें सीखी थी। मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए बरामदे से गुजरा तो लामहला मेरी निगाह इस मेहमान जोड़ी की तरफ उठ गई, जो वक्त की सितम दरीफी का शिकार होकर मेरे पास आए थे और मजबूरन उन्हें रात गुजारने के लिए थाने का मेहमान बनना पड़ा था। एक फौरी ख्याल के तहत मेरे कदम बरामदे के इस दूर इफ्तादा कोने की सिमत बढ़ गए, जहां चमन शाह ने इनके सोने का बंदोबस्त कर रखा था। मैं इनकी चारपाइयों के नजदीक पहुंचा तो मुझे दाऊद के बदन में हरकत सी दिखाई दी। वो चारपाई पर लेटा हुआ जरूर था, मगर अभी तक जाग रहा था। मगर इसकी बीवी नसीम उर्फ छीमा बेसुध पड़ी थी। मैं दाऊद की चारपाई के इंतहाई करीब पहुंचा तो मेरी मौजूदगी को महसूस करके उठकर बैठ गया। मैंने नरम लहजे में इस्तफसार किया, लगता है तुम्हारे सोने की कोशिश बेकार जा रही है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है थानेदार साहब, वो बेदारी से बोला। आप मेरे लिए भला क्या कर सकेंगे? आपको तो खुद भी नींद नहीं आ रही। हमारी ड्यूटी 8 या 12 घंटे की नहीं होती दाऊद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और हमें हफ्तावार छुट्टी भी नहीं मिलती। बस यूं समझ लो कि जब तक थाने में हैं ड्यूटी पर हैं, मगर ऐसी भी क्या ड्यूटी के इंसान रात में भी न सो सके। वो उकताए हुए लहजे में बोला, मैं यही देख रहा हूँ कि आसपास का सारा माहौल नींद की चादर ओढ़े सुकून से सो रहा है, मगर आपका थाना मुसलसल जाग रहा है। आपके अमले का आना जाना लगा हुआ है। हम तो अपनी परेशानी को लेकर नहीं सो रहे, कम अज कम आप लोग तो आराम से नींद पूरी करें। ऐसा थाना तो मैंने कहीं देखा और ना ही सुना। देखो और सुनोगे भी नहीं दाऊद, मैंने मानीखेज अंदाज में कहा, क्योंकि मैं थानेदार हूँ जरा वक्री टाइप का, और ये तो तय है कि जैसा थानेदार वैसा ही इसका थाना। बाकी जहां तक मेरे अमले की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, मेरे बयान में मुबालगा आराई भी शामिल थी। वो सब मेरे ही इशारों पर हरकत में है। मैंने रात के इब्तदाई हिस्से में ही अपने होशियार बंदों को इन 2 डाकुओं की तलाश में रवाना कर दिया था।
जिन्होंने आज शाम तुम मियां बीवी को बंदूकें दिखाकर लूटा था। मुझे उम्मीद है कि वो लोग सुबह तक कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे और इसके बाद ही मैं आप मियां बीवी से किया हुआ वादा पूरा कर सकूंगा। दाऊद ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने इन लोगों से कौन सा वादा कर रखा है। वह अजीब से लहजे में बोला, आपने तो कई घंटे पहले अपने अमले के इन बंदों को 2 डाकुओं की तलाश में भेजा था, मगर इसके बाद भी आप लोगों में से कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और कभी हवालात की जानिब से काना जम्मा की अजियतनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर इस थाने में हो क्या रहा है। अगरचे हम दोनों धीमे लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन शायद शीमा कच्ची नींद में थी, चुनाचा वो भी उठकर बैठ गई और ख्वाब आलूद नजर से हमें तकने लगी। हो ये रहा है, मैंने दाऊद के सवाल में जवाब दिया। कुछ देर पहले चौधरी रबनवाल के भूसे के गोदाम में आग लग गई थी, लिहाजा मेरे अमले को फौरन हरकत में आना पड़ा, और अभी अभी ये इतला मिली है कि थाने की बाईं जानिब थोड़े फासले पर किसी आदमी की लाश पड़ी हुई है। मैंने हवलदार को एक कांस्टेबल के हमरा इधर ही भेजा है। तुम लोगों के लिए ये सब अजीब हो सकता है, मगर हम लोग इसके आदी हैं। थाने में ये चलता रहता है, दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त आप थाने में अकेले हैं? दाऊद की बीवी ने मुझसे पूछा। लाश वाली बात पर उन्होंने जरा तवज्जो नहीं दी थी। हाँ बिल्कुल, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। और छीमा से पूछा, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं जनाब। वो जल्दी से बोली, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया है कि काफी देर से खतरनाक डाकू काना जम्मा के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही। आपका हवलदार खासा गर्म मिजाज का है। इसने डाकुओं के सरदार की जबान खुलवाने के लिए इस पर बड़ा तशद्दुद किया है, मगर आप इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। आपकी तबीयत में नरमी पाई जाती है, शायद इसीलिए अब वो डाकू सकून में है। क्या इसने आपको मतलूबा मालूमात फराहम कर दी हैं? छीमा की बातों में मुझे कहीं भी कोई रब्त जब्त नजर नहीं आया। ऐन मुमकिन है बकौल चमन शाह ये इसकी मुंतशर ख्याली का नतीजा हो। परेशानी के आलम में इंसान अपनी गुफ्तगू का फोकस खो बैठता है। बहरहाल मैंने इसके आखिरी सवाल का जवाब देना जरूरी न जाना और एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, छीमा तुमने शाम में काना जम्मा को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, क्या अब भी तुम ऐसा चाहती हो? जी हाँ, वो खुश होते हुए बोली। रात जब मैंने आपके हवलदार से यही बात की तो उसने मुझे टालने वाले अंदाज में कहा था कि मैं चुपचाप सो जाऊं। काना जम्मा से मेरा मिलना इतना भी जरूरी नहीं है, यह मुलाकात कल सुबह भी हो सकती है। हालांकि मुझे किसी डाकू से मुलाकात करने का शौक नहीं है थानेदार साहब, मैं तो बस एक नजर देखना चाहती हूँ कि ये डाकू लोग कैसे होते हैं। बात के इख्तिताम पर इसने एक हाथ अपनी पेशानी पर मारा। औरतों के बारे में मर्दों का अमूमी ख्याल यही है कि मखलूक बहुत ज्यादा बातूनी होती है। मैं इस अमूमी ख्याल की तरदीद या तस्दीक को एक तरफ रखते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर दाऊद चुपशाह था तो इसके मुकाबले में छीमा को बातूनी कहने में कोई मुजायका नहीं है। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर सकता हूँ छीमा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं तुम्हें अपने साथ हवालात ले जाकर काना जम्मा की एक झलक दिखाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बोलो मंजूर है? छीमा ने शक्लज़दा नदूर से मुझे घूरा। वो मेरी बात का कोई गलत मतलब ले बैठी थी और इसमें इस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं था। आधी रात के वक्त अगर एक पुलिस वाला किसी नामहरम औरत से कहेगा कि इसे इससे कोई जरूरी काम है तो लामहला मज़कूरा औरत का ध्यान इस पुलिस वाले की बदनीयती की ही तरफ जाएगा। आपको इस वक्त मेरी बीवी से क्या काम है थानेदार साहब? दाऊद ने कदरे सख्त और मोहतात लहजे में मुझसे दरियाफ्त किया। ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैंने इन दोनों के चेहरों के तासरात का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद ठहरे हुए और समझाने वाले अंदाज में कहा, दरअसल आप लोगों को नींद नहीं आ रही और मेरे थाने में आज रात कुछ ज्यादा ही मसरूफियत है, जिसकी वजह से मुझे जागना पड़ रहा है और इत्तेफाक से इस वक्त मेरा ज्यादातर स्टाफ थाने से बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा है। इस सूरत हाल में अगर छीमा हम सबके लिए चाय बना देगी तो सर्दी और नींद का मुकाबला करने में काफी आसानी हो जाएगी। ये नींद भगाने वाली बात मैंने अपने लिए की है, आप लोगों को तो वैसे ही नींद नहीं आ रही। ओह तो ये बात है। दाऊद एक गहरी और पुरसकून सांस खारिज करते हुए बोला।
मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था थानेदार साहब। ऐसा वैसा कुछ भी समझने में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है दाऊद, मैंने रसान भरे लहजे में कहा। तुम आज शाम एक बदतरीन हादसे का शिकार हो चुके हो। इस किस्म के परेशान कुन हालात में इंसान का डरा सहमा हुआ जहन कुछ भी सोच सकता है, और ये कुछ भी ज्यादातर मनफी ही होता है। थानेदार साहब, चीमा ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, अगर मैं सबके लिए चाय बना दूं तो आप मुझे काना जमा के पास ले चलेंगे? पक्का वादा, मैंने एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए जवाब दिया। मैं पहले तुम्हें डाकुओं के सरदार की एक झलक दिखाऊंगा, इसके बाद तुम चाय बनाना। वो किसी नन्हे बच्चे की मानद खुश हो गई। मैं चीमा को अपने साथ लेकर हवालात की तरफ गया और उसे काना जमा के सामने खड़ा कर दिया। काना जमा इस वक्त हवालात के फर्श पर सुकड़ा सिमटा आंखें बंद किए बैठा था। मैं अगर चाहता तो इस बदबख्त के लिए गर्म बिस्तर का इंतजाम करवा सकता था, लेकिन जब वो मुझसे ताउन करने पर आमादा नहीं था तो मैं इसकी आसानी और आराम के बारे में क्यों सोचता। वो कोई आम, शरीफ और सीधा साधा इंसान नहीं था जो मैं इखलाकी तकादों के दबाव में आकर अपने रवैये में नरमी भर देता। वो एक बदनाम जमाना डाकू, लुटेरा, कातिल और जाने क्या क्या था। इसके मामले में नरमी का बर्ताव करना इंसाफ के साथ नाइंसाफी होती। हमारे कदमों की आहट सुनकर काना जमा ने आंखें खोल दी। गोया वो सो नहीं रहा था। वैसे इस वक्त वो जिस नौयत की सूरत हाल से दो चार था, इसमें नींद की आमद नामुमकिनात की हद तक मुश्किल थी। आज की रात हम सब जाग रहे थे। ये अलग बात है कि इस रत जगह के लिए हर किसी के पास अपनी एक वजह थी जो दूसरे की वजह से काफी मुख्तलिफ थी। बहरहाल इन तमाम वजूहात के डांडे किसी न किसी तरह इस यकचश्म डाकू जमालदीन की जात के साथ जुड़े हुए थे। काना जमा ने एक भरपूर निगाह चीमा पर डाली तो इसकी आंखें चमक उठी। इसकी आंखों में हैरत की बजाय खुशी के तासरात थे, और इस खुशी का ताल्लुक शनासाई से ज्यादा हवसनाकी से था। मैं जान चुका था कि वो औरत के हसूल की खातिर राल टपकाने का कोई मौका जाया नहीं करता। औरत इस बदामाल शख्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और चीमा सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि एक गोरी चिट्टी और हसीन जमील खातून थी। तुमने एक बदनाम जमाने डाकू का दीदार कर लिया है चीमा, मैंने दाऊद की बीवी की तरफ देखते हुए सपाट आवाज में कहा। अब तुम वादे के मुताबिक मेरे थाने के अमले और अपने लिए चाय बनाओगी? थानेदार साहब, काना जम्मा ने लजाजत भरे लहजे में कहा, एक प्याली चाय मेरे लिए भी बनवा दें। सरकार, इस रात की ठंडक और आपके हवलदार की मार ने मेरे बदन का जोड़ अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी क्या हालत है। अपनी इस हालत के तुम खुद ही जिम्मेदार हो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। इस हालत से बाहर निकलना भी तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम मेरे तमाम सवालात के ठीक ठीक जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे मामले में किसी हद तक नरमी बरतने को तैयार हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं, वो बेबसी से बोला। मैं अपने गिरोह के किसी आदमी के मौजूदा ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैंने दो टोक और सफाक लहजे में कहा। फिर तुम्हारे लिए चीमा नहीं, हवलदार चमन शाह चाय बनाएगा, और वो भी मिर्चों वाली। काना जमा की नातोद अंदाज में मुझे घूर कर रह गया। मैं चीमा के साथ आगे बढ़ गया। मैं दरअसल चीमा को वो जगह दिखाना चाहता था जहां चाय बनाने का तमाम सामान रखा हुआ था, लेकिन कबल इसके कि मैं मतलूबा मकाम तक रसाई हासिल करता, कांस्टेबल एहसानुल्लाह बाबा हयाता को लेकर थाने पहुंच गया। इन दोनों ने गर्म चादरों की बकलें मार रखी थी, जिसकी वजह से इनके चेहरे पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे थे। चीमा, तुम थोड़ी देर के लिए बरामदे में अपने खामद के पास जाकर बैठो। हवलदार चमन शाह भी वापस आने वाला है, फिर तुम सबके लिए एक साथ चाय बनाना। जी ठीक है, वो फर्मा बरदारी से बोली और बरामदे की जानिब बढ़ गई। मैं बाबा हयाता को लेकर अपने कमरे में आ गया। कांस्टेबल एहसानुल्लाह को मैंने बाहर ही रुकने का कह दिया था। हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता की उम्र 60 से मुतजाविज थी। वो दुबले पतले बदन का मालिक एक आम सा काश्तकार था, ताहम इस वक्त इसके चेहरे पर आम से तासरात नहीं थे। वो अपने आधी रात को थाने बुलाए जाने पर खासा खफा और मुकदर दिखाई देता था। मैंने इसकी मुश्किल को आसान करने की गर्ज से नरम लहजे में कहा, बाबा हयाता, मैं इस तकलीफ के लिए तुमसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक मजबूरी की खातिर तुम्हें इस वक्त थाने बुलाया है। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थानेदार साहब? मेरे माजरती अल्फाज ने इसकी कुल्फत को गायल कर दिया था, इसलिए इसने मुअद्दल अंदाज में इस्तफसार किया था। आपके कांस्टेबल ने मुझे बताया है कि आप काना जमा के बन्नू के ठिकाने के वगैरह के बारे में मुझसे पूछताछ करने का इरादा रखते हैं। मुझे इस बात का इल्म हो चुका है कि आपने इस खतरनाक डाकू को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यकीन जाने कि मैं इसके साथियों के बारे में कुछ नहीं जानता।
मैं तो एक सीधा साधा और अमन पसंद काश्तकार हूँ जनाब वाला। अगर तुम खाना जम्मा और इसके गिरोह के दीगर अफराद के बारे में किसी किस्म की मालूमात नहीं रखते तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती बाबा हयाता। इस गिरोह के 2 डाकू राजू और माखा ने आज शाम तुम्हारे 2 मेहमानों को भी लूट लिया है। और मेरे 2 मेहमान, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा, आप 3 लोगों का जिक्र कर रहे हैं थानेदार साहब? उसने उलझन ज़्यादा लहजे में सवाल किया। बाबा हयाता के इस सनसनीखेज इस्तफसार ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं दाऊद और इसकी बीवी छीमा की बात कर रहा हूँ। दाऊद गुजरांवाले के महल्ला बागबानपुरा में बर्तन बनाने का एक कारखाना चलाता है और इसकी 10 एकड़ जरी अराजी तुम्हारी मजारत में है। वो हर साल एक रात के लिए तुम्हारे पास आता है और अगली सुबह वापस चला जाता है। कल शाम भी वो अपनी बीवी छीमा के साथ इधर जलालपुर भटिया आया था, मगर इस वक्त तक कोट गादी कलां जाने वाला आखिरी तांगा निकल चुका था, इसलिए वो दोनों तुम्हारे पास ना पहुंच सके। और फिर राजू माखा ने उन्हें लूट लिया। मैंने अदराए हमदर्दी रात गुजारने के लिए उन्हें थाने में जगह दे दी है। अभी तुमने जिस औरत को मेरे साथ देखा वो दाऊद की बीवी छीमा है। दाऊद बाहर बरामदे में एक चारपाई पर लेटा या बैठा हुआ है। हाँ, मैंने एक बंदे को बरामदे में और एक खूबसूरत औरत को आपके साथ देखा है, मगर मैं इन मियाँ बीवी को बिल्कुल नहीं जानता थानेदार साहब। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। बाबा हयाता के जवाब में मुझे सरतपा हिलाकर रख दिया। इसका तो सीधा साधा यही मतलब निकलता था कि दाऊद और छीमा ने मुझसे सरीहन गलत बयानी की थी, और या फिर मेरे सामने बैठा हुआ वो काश्तकार दरोग गोई का सहारा ले रहा था। जब कोई इंसान दानिस्ता झूठ बोलता है तो इसके पीछे इसका कोई खास मकसद पोशीदा होता है। इन दोनों पार्टियों में कौन सच्चा और कौन झूठा था, इसका फैसला बहुत जरूरी हो गया था। मैंने बाहर मौजूद कांस्टेबल को आवाज दी। एहसानुल्लाह इन लम्हात में मेरा जहन तूफानी रफ्तार से मुख्तलिफ दाबियों पर तबाह आदमाई कर रहा था। किसी भी नाजुक मामले में सच और झूठ के बीच एक बहुत ही बारीक सी नादीदा लाइन होती है। इस लाइन के पार देखने वाला ही सच तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो पाता है। इस मकसद के हसूल के लिए सरे दस्त मेरे दिमाग में यही आया था कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाकर बात करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। यस सर। मेरी पुकार पर कांस्टेबल एहसानुल्लाह ने मेरे सामने हाजिर होने के बाद मुअद्दब लहजे में कहा, तुम इन दोनों मियाँ बीवी को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ। इनसे कहना मैंने एक जरूरी काम से बुलाया है। ओके मलिक साहब, वो मुस्तादी से बोला। जब वो मेरे कमरे से निकलने लगा तो मैंने एक फौरी ख्याल के तहत इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जब तुम इन्हें यहाँ पहुंचा दो तो वापस जाकर इनके अटैची केस को चारपाई के नीचे से निकालकर रिकॉर्ड रूम की अलमारी के अंदर छुपा देना। समझ गया मलिक साहब, कांस्टेबल ने कहा। आपके हुक्म की तामील की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में मेरा दिमाग छोटी और बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा था। बाबा हयाता के बयान ने मेरी सोच की बसात को उलट कर रख दिया था। अगर वो बूढ़ा काश्तकार कोई ड्रामा नहीं कर रहा था तो फिर इन मियाँ बीवी की तरफ से मुझे रेड अलर्ट होना था और मैं कुछ ऐसा ही कर रहा था। बाबा हयाता, तुम दोबारा गर्म चादर की बक्कल मार लो ताकि दाऊद और छीमा तुम्हारे चेहरे को देख ना सके, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। और जब तक मैं ना कहूं तुमने अपने चेहरे से चादर को हटाना नहीं है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? मैं समझ गया जनाब, वो फर्मा बरदारी से बोला। बात के इख्तिताम पर इसने गर्म चादर की इस तरह बक्कल मारी कि इसकी नाक और होंठ ही खुले हुए थे या फिर किसी हद तक आंखें। बाकी का तमाम चेहरा इस बक्कल की महफूज पनाह में चला गया था। आइंदा 2 मिनट में कांस्टेबल दाऊद और छीमा को मेरे कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया ताकि अटैची केस के हवाले से वो मेरे हुक्म की तामील और अपने काम की तकमील कर सके। थानेदार साहब, आपने हमें किसी जरूरी काम से बुलाया है, दाऊद ने कहा। कहीं आप हम मियां बीवी दोनों से चाय बनवाने का इरादा तो नहीं रखते? चाय का मामला बाद में देखेंगे, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। फिलहाल तो मैंने आप लोगों को एक खतरनाक डाकू की शनाख्त के लिए यहाँ बुलाया है। हो सकता है ये उन्हीं 2 डाकुओं में से कोई एक हो जिन्होंने शाम से थोड़ी देर पहले आप दोनों को खतरनाक बंदूकों को निशाने पर रखकर लूट लिया था। आप किस डाकू की बात कर रहे हैं? दाऊद ने ससराती हुई आवाज में इस्तफसार किया, फिर तेज नजर से बक्कल पोश बाबा हयाता की तरफ देखा। तुम्हारी नजर का निशाना खता नहीं गया दाऊद,
मैंने बदस्तूर इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए ठोस अंदाज में कहा, मैं इसी डाकू की बात कर रहा हूँ। इस बंदे ने तो अपना चेहरा छुपा रखा है। दाऊद ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, मैं इसकी शनाख्त कैसे करूं? माना कि मेरा हाफजा बहुत कवी है, मगर मैं किसी दबीज गरम चादर के पीछे तो नहीं देख सकता थानेदार साहब। मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देता हूँ, मैंने मोतदल अंदाज में कहा। फिर बाबा हयाता की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, चाचा जरा अपना चेहरा खोलकर इन लोगों को दिखाओ। मैंने दानिस्ता बाबा हयाता का नाम नहीं लिया था, इसकी जगह चाचा का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ताकि अगर मियां बीवी ने मेरे साथ कोई छल फरेब किया था तो मैं इनकी बदनीयती की तह में उतरकर इनकी असलियत तक रसाई हासिल कर सकूं। बाबा हयाता ने मेरे हुक्म पर अपने चेहरे को इन दोनों पर नुमाया कर दिया। उन्होंने बाबा हयाता को देखा, फिर मानी खेल नजरों से एक दूसरे को तकने लगे। दाऊद ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, थानेदार साहब, ये बंदा तो दुबला पतला और उम्र रसीदा है, जबकि वो दोनों डाकू उधेड़ उम्र और हट्टे कट्टे थे। आपने गलत बंदे को पकड़ लिया है, हमें लूटने वालों में ये बुजुर्ग शामिल नहीं था। तुम इस बारे में क्या कहती हो? मैंने सवालिया नजर से चीमा को देखा। दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहा है जनाब, वो दाऊद की बात की तस्दीक करते हुए बोली। मतलब ये कि मैंने एक के बाद दीगरे दाऊद और चीमा की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, ये बंदा राजू है और ना ही माखा है ना? वो बैक दबान बोले, जी आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये शख्स कौन है? मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुम इसे जानते हो? हम तो इन चाचा जी को नहीं जानते थानेदार साहब, चीमा बेदारी से बोली। आप ही बताएं ये बाबा कौन है और आपने डाकुओं के शुबे में इसे कहां से गिरफ्तार किया है? इस दौरान में कांस्टेबल एहसानुल्लाह अपना काम निपटाकर वापस आ चुका था और मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर ही चाको चौबंद खड़ा था। मैंने इस बुजुर्ग को कहीं से गिरफ्तार नहीं किया। मैंने दाऊद और चीमा को हकायक से रोशनास कराने की गर्ज से वाहिगाफ अल्फाज में कहा, गिरफ्तार शुदगान मुल्जमों और मुजरमों को मैं अपने कमरे में कुर्सी पर नहीं बिठाता, बल्कि काना जम्मा की तरह हवालात में बंद करता हूँ। मैंने इसे कोट गाजी कलां से खास तौर पर आधी रात को इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी असलियत को मंजर आम पर ला सकूं। और ये महज बाबा नहीं बल्कि हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता है। मेरे अल्फाज आसमानी बिजली की मानद इन दोनों पर गिरे। इनके चेहरे पहले मुतगय्यर हुए, फिर स्याही मायल हो गए। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इन्हें यूं बेनकाब कर दूंगा, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। बाबा हयाता को थाने बुलाने का ख्याल तो खुद ब खुद कुदरत ने मेरे दिमाग में डाला था। मेरा तो इस तरफ मुतलक ध्यान नहीं गया था। ईशा की नमाज के बाद अल्लाह की जानिब से मुझे ये रहनुमाई हासिल हुई थी। इसके बाद ही मैंने कांस्टेबल एहसानुल्लाह को मौदा कोट गाजी कलां की तरफ दौड़ाया था। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे दिमाग से गुजर गए। इस दौरान में मैंने इन दोनों को अपनी कड़ी निगाह में रखा हुआ था। वो न पाए रफ्तन न जाए मानन ऐसी सूरत हाल से दो चार थे। कबल इसके कि वो मकार किसी लंगड़ी वजाहत का सहारा लेते, मैंने गरजदार आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? थानेदार साहब, क्या ये वही मियां बीवी हैं जिन्होंने आपको बताया था कि मैं इनका मुजारा हूँ? बाबा हयाता ने मुझसे पूछा। मियां बीवी का रिश्ता तो बहुत मोहतरम और पाकीज़ा होता है बाबा। मैंने इन दोनों को नफरत अंगेज नजर से घूरते हुए जहरखंद लहजे में कहा, ये कमीने इस रिश्ते के काबिल नहीं हैं। फिर मैं दोबारा दाऊद और चीमा की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम क्या मुंह में घुंघियां डाले बैठे हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताओ तुम आखिर हो कौन, और मेरे साथ ये ड्रामा रचाने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैं इनकी जबान से किसी भी लूले लंगड़े जवाब की तवक्को कर रहा था। जवाब तो उन्होंने दिया, मगर मुंह के बजाय पांव से। वो एक झटके से उठे और आन वाहिद में उन्होंने दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। मेरे कमरे के दरवाजे पर कांस्टेबल मुस्तैद खड़ा था। मैंने बावाज़ बुलंद कहा, एहसानुल्लाह, इन्हें रोको, ये भागने ना पाए। इसके साथ ही मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और बिजली ऐसी सूरत से इनके ताक़ुब में लपका। एहसानुल्लाह मुस्तैद तो था, मगर दाऊद जैसा चीता चालबाज नहीं। दाऊद ने बड़ी महारत से इसे जोर का धक्का दिया और बरामदे की सिमत दौड़ता चला गया। चीमा भी इसके हमरा थी। वो दोनों अपनी चारपाइयों के पास पहुंचे और इसके नीचे अपना अटैची केस तलाश करने लगे। इस तलाश में इन्हें सख्त मायूसी हुई, क्योंकि मैंने इनके बक्से को वहां से उठवाकर कहीं और पहुंचा दिया था।
एक बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि वो अटैची केस इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास महफूज रखी है। मैंने इन्हें रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए करख्त लहजे में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, शराफत से गिरफ्तारी दे दो। तुम दोनों दाऊद और चीमा तो हरगिज नहीं हो सकते। तुम जो कोई भी हो, मैं अगले 1 घंटे में तुम्हारी असलियत जान लूंगा। वो मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही जिद्दी निकले। गिरफ्तारी देने के बजाय उन्होंने फरार होने की कोशिश की। मुझे मजबूरन उनकी टांगों पर फायर करना पड़ा। मेरा निशाना खता नहीं गया। वो बरामदे से निकल ही रहे थे कि मेरी चलाई हुई गोलियों ने उन्हें चीखते हुए ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। इस वक्त हवलदार चमन शाह कांस्टेबल खादिम हुसैन के साथ वापस आ गया। हवलदार की कहानी सुनने का वक्त था और ना ही मौका। मैंने चमन शाह और दीगर कांस्टेबल्स की मदद से दोनों जख्मी भगोड़ों को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया। उनके बराबर में दूसरे कमरे में खतरनाक डाकू कान जमा बंद था। दाऊद और चीमा के नाम से जिन फर्जी मियां बीवी ने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर थाने में रात गुजारने की सहूलत हासिल कर ली थी, वो दर हकीकत काना जम्मा ही के गिरोह से ताल्लुक रखते थे। इस ड्रामे के तवस्सुत से वो अपने सरदार को हवालात से फरार कराने की नीयत से थाने में रुके थे। इनके बक्से की तलाशी खासी सनसनीखेज और सूदमंद साबित हुई। इस अटैची केस के अंदर 3 रिवाल्वर, 4 खंजर और आतिशजनी का तमाम सामान, पेट्रोल और माचिस वगैरह सब मौजूद था। वो इस सुनहरी मौके की तलाश में थे जब थाने का अमला सो जाए और इन्हें कोई भरपूर कार्रवाई करने के लिए रास्ता साफ मिले। इनकी बदकिस्मती के इस रात मेरे थाने के अमले ने गोया खुद पर नींद हराम कर ली थी। इन नकली मियां बीवी ने मुजारा बाबा हयाता का नाम तो सुन रखा था, लेकिन इसकी सूरत से वाकिफ नहीं थे। शायद इसीलिए कुदरत ने मेरे जहन में ये सोच डाली थी कि मौजा कोट गाजी कलां से बाबा हयाता को थाने बुलाना चाहिए। काना जम्मा के गिरोह के लोगों ने अपने गुरु को मेरे थाने के हवालात से फरार कराने का जो नापाक मंसूबा बनाया था, वो रब के फजल से कामयाब नहीं हो सका था। आइंदा 1 हफ्ते में मैंने इस गिरोह के बाकी मानदा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें राजू और माखा भी शामिल थे। इन तमाम दस्तूर शिकन अनासिर को मैंने करार वाकई सजा दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था और मुझे इस काम में 100% कामयाबी भी हासिल हुई थी। लेकिन इस मामले के निमट जाने के बाद भी कई दिन तक चमन शाह उदास रहा। क्या बात है शाह जी? एक रोज मैंने इससे पूछ ही लिया। लगता है आपको काना जम्मा और उसके बंदों के इबरतनाक अंजाम से खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है मलिक साहब, वो बुझे हुए लहजे में बोला। मैं पूछे बिना ना रह सका, फिर कैसी बात है? इन मरदूद डाकुओं के इंजाम से तो मैं बहुत खुश हूँ मलिक साहब, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला। लेकिन मेरा आइडिया बीच में ही रह गया। आप किसी मिर्चों वाले आइडिया की बात कर रहे हैं शाह जी? मैंने सवालिया नजर से इसकी तरफ देखा। उसने असाबत में सर हिलाने पर इक्तफा किया। शाह जी, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, मैंने तशफी भरे लहजे में कहा। ये दुनिया इबरत सराय दहर है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक दस्तूर शिकन पैदा होता रहेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके आइडिया को आजमाने का मौका भी निकल आएगा। जवाब में चमन शाह के होठों पर तवाना और मानी खेल मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं समझ गया कि इसका मूड बहाल हो चुका है। आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है, एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।